Welcome to SFF podcast with Hiren Kadkar. Today, my guest is Mr. Rahul Bajpai from Jeet for Life. How are you, sir? All good, sir. Thank you for inviting us. It's really a pleasure. So आज तो आप क्लासेस से ही आए हो डायरेक्टली यहाँ पे जस्ट सेशन खत्म किया हुआ है, ऑल्टरनेट सेशंस चलते हैं हमारे क्लासेस स्कूल्स में भी है, जिम्स में भी है. डू इट. सो आपका काफी टफ शेड्यूल होता होगा दिन में वेरी हेडेक. सम डे हेडेक, सम डे इट विल बी रिलीफ. जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है बिकॉज़ पेरेंट्स को लगता है कि स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट. तो वो एक पार्ट से वो इम्पोर्टेंट भी है. यस, इट इज ओके, ऑल गुड. Yes, nice. So we'll start with the podcast, and my first question to you would be, what do you think about Jeet for Life? How do you get the name, and what is the history behind it? I think Jeet for Life was not first choice. I think it's later came. First I was I have carry on it for Jeet Kondo. Okay. So Jeet Kondo is something like that. No one will replace it. You know that Jeet Kondo is सब करते हैं. Everyone has their license. So बोले कैसे connect करें उसको? So my father started Jeet Kondo classes in Shivaji Park, Dadar, in late 70s, 80s, in late 80s. Oh, so he started in open pitch ground. So that's the way came on कि martial arts blood में ही है. So carry on करते we shifted to Virar. So I was when I started in 2011, so I was going slow batches. Evening में मैं batches लेता था, classes और training करता था. And then later I started my personal classes overall. So where I was connected to कि उसको कैसे connect करें, because Jeet Kondo is something that everyone has their limitations. सबके पास वो आर्ट का नाम है. In every third person knowing of Jeet Kondo, yes, I also do Jeet Kondo. So I said, चलो I will change the name. So I said, Jeet for Life कैसा रहेगा? खुद से ही क्वेश्चन किया, खुद से ही एक्सेप्ट किया, खुद से ले भी लिया. Jeet for Life is very connected. और आधे लोग तो मुझे अभी भी जीत से नाम से ही जानते हैं. बोला नहीं, दिस इज द एकेडमी नेम, माय नेम इज राहुल बाजपेयी. So Jeet Kondo, Jeet for Life came from Jeet Kondo. It's really inspired by Bruce Lee. So my father was influenced. My master Cheetah was very influenced by him. I also influenced by him. नहीं बाबा, जो later on उन्होंने जो भी स्क्रिप्ट या फिलोसफी छोड़ी है, उससे मैं रियलाइज होता है कि लेट 70s में बंदा MMA का पार्टिसिपेशंस कर रहा है, and he used to create his MMA, and he is never to take their credit of MMA. It's something like that. Influenced by MMA. So आज भी मैं बोलता हूँ कि नहीं, he is the father of MMA. So एक कंसर्न उनका भी आप जाना चाहिए, because उनको कोई पूछता नहीं है, बोलते सब लोग चले जाते हैं फाइटर्स लोग. Even UFC लेटर में प्रेसिडेंट जो है डेना वाइट, उन्होंने बोला भी है, yes, he is the father of mixed martial art because he was the first who mixed all the things like Muay Thai, boxing, kickboxing, even street fighting. बराबर. So it's in every style system has its own control, like karate, shotogun, taekwondo. So arrogance नहीं आना चाहिए उसमें, kung fu. So each and every person has his own art. यहाँ पे वो better चीज हो सकती है, आपको carry on करना है क्या? True. So आपके right now वैसे ही विरार में कहाँ क्लासेस हैं? Mostly my more active classes in Virar West. Okay. Virar East में I think we have schools like Father Engels. We teach practical things like kickboxing, boxing, punches. और जो भी पालघर डिस्ट्रिक्ट से या जो भी पालघर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैचेस होते हैं, वो हम लोग डायरेक्ट स्कूल से ही पार्टिसिपेट कराते हैं. बिकॉज जो ईस्ट का जो क्राउड है या मोस्टली जो विरार का क्राउड है, इट्स नॉट अफोर्डेबल कि एवरी पर्सन या एवरी चाइल्ड कैन अफोर्ड दैट ट्रेनिंग. सो दिस समथिंग लाइक दैट कि हम वहाँ पे ही ट्रेनिंग देके जो बेस सैलरी हमको मिलती है स्कूल से, उसमें ही हमको ट्रेनिंग देके पार्टिसिपेशन करवाएं. जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, आई थिंक MMA आता है, वर्कआउट का किक बॉक्सिंग आता है. ओके. मुay thai है, अभी तो जूडो भी आ गया है. सो इट इज समथिंग कि विरार वैसे में भी है वो गेम. इट इज नॉट समथिंग कि उनके पास नहीं है, हमारे टाइम पे तो नहीं था. इट इज ओनली सिर्फ कराटे एंड टाइकोंडो, और वो भी बहुत एक हाई फीस लिया जाता था वो चीज से. सो वो चीज नहीं, आज ब्लेस है. 5 to 10 रुपीस हार्डली वसील कला क्रीडा में बैठ के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट टू नोटिस जहाँ पे भी अच्छा मास्टर रहेगा, अगर करेक्ट मास्टर मिला तो उसको सपोर्ट करके आगे लाएगा एज अ फाइटर. बराबर. या उसको कोच तो बना ही सकता है, असिस्टेंट बना सकता है कि मेरे एब्सेंस में आप क्लासेस लो, यू टेक केयर, वी कैन सी कि हम आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं. बराबर. सो दैट MMA इज ऑल अबाउट हसल बसल. आई थिंक MMA आने के बाद तो आई थिंक काफी अच्छा बिजनेस हुआ है. इसके पहले नहीं था. आई थिंक रेफरी आते हैं, इसमें कटमैन आता है, सो वी गेट दैट एम्प्लॉयमेंट. उसके पहले नहीं था. उसके पहले अगर मैं आपको हिरेन जी आपको बोलूँ तो सिर्फ कोच रहता था, उसके पीछे उसका फीस, टूर्नामेंट फीस जो भी बेचारे ने मारा है 300-400 का मार्जिन, और एक ट्रॉफी रहता था. MMA आने के बाद तो एम्प्लॉयमेंट हो गया कि अगर हिरेन सर एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एमेच्योर, आई थिंक हम तो प्रो लेवल ही करते हैं आपको, पर अगर एमेच्योर कर रहे हैं
So you have that kind of people. Yes. क्या आप बोलेंगे कि नहीं यार मैं राहुल सर को तो कटमैन दे सकता हूँ, उनसे रेफरी करा सकता हूँ. I'm talking about amateur. I'm not talking about pro level. So you are generating an employment. True. It is something like it is good for MMA community ना. आप एक employment generate कर रहे हो जो उसके पहले कभी नहीं था. उसके पहले it's a good way. So राहुल जी, मेरा next question आपसे ये रहेगा. What do you think about MMA? Is it exploding, finally exploding in वसई विरार? जैसे दूसरे मार्शल आर्ट्स काफी सारे थे, कराटे थे, ताइक्वांडो थे, और एमएमए बस थोड़ा ही क्लासेस है. जैसे मुझे जैसे पता है, एक तो आपका है जीत फॉर लाइफ और दूसरा है तांडव. तो वसई विरार में सिर्फ ये दो है. बट व्हाट डू यू थिंक, इज इट एक्सप्लोडिंग राइट नाउ इन वसई विरार? यस, मोस्ट ऑफ जो शोटोगन या जो किक बॉक्सिंग भी करते हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है एमएमए टीचिंग करना. बहुत अच्छी बात है. आई नो उनका थोड़ा नॉलेज अगर जितना भी रहेगा, बट अभी लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है. अगर कोई भी एक बच्चा फाइट करके आता है तो वो बोलता है मुझे यहाँ पे किक, पंचेस, ग्रैपलिंग सब सीखने को मिल रही है. तो वो एक ट्रेडिशन ब्रेक हुआ जा रहा है कहीं से कि वो बेल्ट्स की सिस्टम्स या जो भी एक ग्रेड सिस्टम या फिर कुंफू में जो रिबेट सिस्टम था वो सिस्टम शायद ओल्ड एज होता जा रहा है. लोग रखते हैं बेल्ट्स वगैरह. मेरे एकेडमी में तो मैंने बहुत हार्डली रखा है 1 ईयर में 1 बेल्ट. तो भी अगर उसको जरूरत है तो जैसा फाइट ही आप कर लो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेल्ट है. लेकिन माय जिग फॉर लाइफ बिकॉज इट इज अ चीटिंग कि हमारे मास्टर ने हमको बेल्ट नहीं दिया. He doesn't have tied the belt. Who am I who can supposed to give the belt? It is okay for a business level. It is okay. It is a great system. इसमें senior और junior का value रहता है. But it is okay. But it is mostly demolishing. I think वो चीजें धीरे-धीरे जा रही हैं. So yes, there is a downtown also. Those great fighters हैं. उनके लिए जो fighters अच्छे हैं जिनको मैंने देखा है fights में, वो है विरार में. There is something Tandav is doing very well. Yes. अमोल का मैंने fight देखा है. I think we are something floating something in Virar Vasai. Right. Okay, but promotion अगर विरार वसई में देखा जाए तो आपने ही किया है और किसने किया है? लेकिन यहाँ तक कोई आया ही नहीं विरार वसई में. हाँ, ट्रेनिंग चल रहा है बट अभी तक कोई प्रमोशन आया नहीं. जितने भी प्रमोशन हो रहे हैं वो बोरे भाईंदर के उस तरफ ही हो रहे हैं. बराबर. ओवरऑल जो प्रमोशन जो आपने कर लिया था नाला सपर वो आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा. इट्स अ वेरी ग्लैड थिंग कि विरार में नहीं तो फाइटर्स को वहाँ जाना पड़ा. पहली बार था कि फाइटर्स वहां से आ रहे हैं. हाँ, भिवंडी से कोई फाइटर नाला सपर आई थिंक कैपिटल मॉल आके फाइट करने गया. बैंगलोर से आए थे फाइटर. बैंगलोर से ऑलमोस्ट ऑल ओवर आई थिंक इंडिया से आए थे प्रो फाइटर्स थे. यस. सिलेक्टिव आई थिंक 8 पैक्स हमने रखे थे. यस. 8 फाइटिंग्स थे उसमें. आई थिंक बैंगलोर 5 फाइट थे अपने. 5 फाइट थे उसमें. कोई बैंगलोर से था, कोई भिवंडी से था, तांडव था. सो देयर आर मेनी फाइटर्स ऑल ओवर. उसमें गर्ल्स मैच भी रखा था हमने. यस. यस, गर्ल्स फाइट भी था. यस, उसमें एक शायद अपोनेंट नहीं है. ठीक है, वो तो उनका है कॉल. लर्निंग फेज है अपना, जिसमें से अपने को पता चलता है लोग कैसे होते हैं, कैसे? कौन आता है, कौन शो ऑफ करता है, वो मैटर करता है. पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है. यस. सो आपका इतने साल का बैकग्राउंड था मार्शल आर्ट्स में, तो आपने तो कभी ना कभी स्ट्रीट फाइट तो हो ही गई रही है आपकी. यस. तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो स्ट्रीट फाइटिंग और a cage ring MMA fight? आई थिंक स्ट्रीट फाइटिंग फॉर मी एज अ पर्सनल आप थोड़े डर ही जाते हो. तो भी ऑनेस्ट आप कितने भी बड़े कोच अब 3 लोग खड़े हैं. मैं मेरा तुलिप स्टार का किस्सा बताऊं. मैं आ रहा था वो टाइम कैटरिंग हेड सो जस्ट फिनिश ऑफ और वहां से मुझे पता था कि ऑटो कर लेना. नहीं तो जैसे अमित जी का बंगला है उसके आगे थोड़ा स्लम एरिया है. वहाँ पे थोड़े से गंदे लोग भी रहते हैं और वो भी रहते हैं. सब यार जाके देख लेते हैं. तो वहाँ पे आई थिंक मेरे शॉर्ट्स में थे बिकॉज वो 2-3 टाइम का पेमेंट का इवेंट मेरे पास आ गया था और ऑटो मिला नहीं. सो वहाँ पे लिटरली वो था. आप बोलिए मैं क्या किया है. लिटरली मैंने एक पत्थर उठाया, एक नीज पे मारा है और जैसे एक रन. ओके, आपने सामने वाले बंदे के नी पे मार दिया पत्थर. नी पे किक मारा है. ओके. पत्थर इस वजह से था कि 3 लोग थे. सो आप इतने भी टैलेंटेड हो. वो टाइम पे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस था. तो एज ए कोच उतना पार्टिसिपेशन नहीं है मेरा बिकॉज शेड्यूल इतना है. लेकिन तो वो टाइम पे भी आप सेफ जोन खेलते रहो. तो सेफ जोन कहीं ना कहीं ठीक है. यू कैन हैव क्या ब्लेजर निकालोगे, शर्ट निकालोगे, वो मूवीज में चल रहा है. इट इज समथिंग यू कैन शॉर्टकट. आप उसको नीज पे मारोगे, गले पे मारोगे एंड यू विल रन अवे. बराबर. ओके, यू कांट स्टॉप देयर कि नहीं आप होल्ड करोगे एकदम किक्स पंच की तरह. नहीं, स्ट्रीट फाइटिंग इज समथिंग लाइक यू कम एंड यू गो. क्विक सब वीक पॉइंट्स पे मारोगे. तो मेरा तो वही है कि जितना इजी वे में खत्म होता है आप खत्म करके आप निकल जाओ उस जगह से. बराबर. इट इज अ सेफर वे. चीज आई थिंक स्ट्रीट फाइटिंग में काम करती है. एमएमए इज अ प्योर गेम. आपको टेक डाउन्स आने चाहिए, क्रैपलिंग आने चाहिए. यस. सो आपको क्या लगता है
जैसे आपने लास्ट टाइम दीप को भी ट्रेन किया था, Yes. अभी शुभम को आप ट्रेन कर रहे हो, हम्म सो आपको क्या लगता है what is the most important thing a fighter needs to have to become a good fighter or a great fighter? फर्स्ट टू डिसिप्लिन। आई थिंक वो क्लास में एंटर कैसा करता है, अगर उसका जेन्युइन रीजन है वो जॉब पे से आते हैं, मोस्टली बिहार होसे में जो है सब जॉब कंप्लीट करके आते हैं, तो वो समझ में आता है कि नहीं सर मैं 10 लेट आ जाता हूँ और आई विल डू इट। अगर आप उसको बोल देते हो कि एक फाइट आ रहा है तो उसमें उसका पार्टिसिपेशन दिखा जाता है, बराबर। पार्टिसिपेशन वो क्या कर रहा है। और एज ए कोच तो बीच में पिसा ही जाता है, वो बीच में प्रमोशन के बीच में पिस जाता है या फिर वो अपने ट्रेनिंग केस में पिस जाता है, वो फाइटर को भी संभाल रहा है और उसको भी संभाल रहा है। और अगर फाइट थोड़ा सा भी अगर अच्छा सीख गया तो वो शायद कोच को ही भूल जाता है। तो भी रियलिटी ऑफ इंडियन एमएमए वो दिखता भी नहीं कि आई हैव स्टार्टेड तो मुझे इनको सपोर्ट करना चाहिए, आई विल गो फॉर सेकंड फाइट, थर्ड फाइट। सो मोस्ट ऑफ कोच आर स्ट्रगलिंग ऑन दैट। अगर वो नहीं है तो ब्लेस है वो कोच, तो उसके पास वो टीम है। बराबर। मोस्टली तो टीम टूट जाती है बिकॉज वो खुद ही बाद में कोच बन जाते हैं। ये भी एक खास रियलिटी जो बहुत कम बात करते हैं उसमें, शायद आपको मालूम भी नहीं रहेगा या उसका रजिस्टर्ड भी नहीं रहेगा, बट वो कोई जिम में जाके कोचिंग करता रहेगा। सो आपके ही क्लाइंट्स बहुत हो जाते हैं कि यार मैंने तो ग्रुप बनाया था तो बोल देता तो हम ही एक सेशन उसको दे देते। सो ये तो अलग चीज है। बाकी उसका डिसिप्लिन, उसका ट्रेनिंग, बेसिक जो स्ट्राइकिंग उसका कितना मंथ उसने किया है, ग्रैपलिंग उसने कितना किया है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक कोच उसको नहीं ट्रेन कर सकता या एक ग्रुप नहीं ट्रेन कर सकता, तो आई गो फॉर मल्टीपल कोचेस। ओके। इवन दो मुझे उसका सेमिनार का पे करना पड़े 500, इवन ही चार्ज की मैं 1000 लूंगा वन डे का, आई विल गिव इट, बट ट्रेन देम टू व्हाट दे नीड। लेकिन मेडिकल में गया हूँ, मुझे जुकाम की जरूरत है तो डॉक्टर मुझे उसी की दवा देगा। ट्रेन देम व्हाट ही नीड, डोंट गो फॉर बेसिक्स। मैं आया हूँ आपके लिए, मैंने कॉन्वर्सेशन की, सो आई टाइप विद मोस्ट ऑफ जिम्स जिनके टॉप बीजेजे इवेंट्स होते हैं, एमएमए के इवेंट्स होते हैं, तो उनके साथ ही डायरेक्ट मैंने मेरे फाइटर्स के साथ टाइप किया। तो इट इज इजी वे, आपका हाफ लोड कम हो जाता है कि अब वो वहाँ पे स्पार हो रहा है। मोस्ट ऑफ जो भी मेरे फाइटर्स हैं वो मुंबई रहते हैं, तो इट इज ओके कि कभी कभी वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं ऑल्टरनेट डेज, फिर वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं। तो इजी वे हो जाता है, स्पारिंग नहीं होता है। तो जब वो रिंग्स में जाते हैं तो ऑलरेडी हाफ रेडी होते हैं। और समथिंग दैट वी कैरी ऑन। आई थिंक मैं तो यही चीज फॉलो करता हूँ अपने फाइटर्स में। नहीं, बराबर है। कैसा है कि मल्टीपल जगह पे ट्रेन करेंगे तो मल्टीपल वहाँ के इफेक्ट्स आएंगे, या बोलो कि वो स्टाइल सीख पाएंगे। हर एक कोच का अलग अलग अपना अपना स्टाइल रहता है और मल्टीपल स्टाइल्स पे सीख पाते हैं। 8 to 10 फाइटर्स रहते हैं, उनका राउंड हो जाता है उतना, तो उनका एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक लाइट वेट आया, एक हैवी वेट आया, एक मिडल वेट आया, बराबर। तो स्पारिंग में वो कैसा करेगा, और वो भी पॉलिश करते हैं। इट इज ओके फॉर बिजनेस आल्सो। उनको लगता है कि नहीं चलो उन्होंने टाई अप किया है, सो इट इज समथिंग कि उनके लिए भी अर्निंग रहता है, हमारे लिए भी ओके रहता है कि नहीं, इट इज ओके कि उनको कुछ नया सीखने मिल रहा है। तो वही डेली में जैब क्रॉस, डेली जो टेक डाउन बताऊंगा, दे गेट बोर ऑन इट। राइट। कितना दिन करेंगे यार, हो गया। तो इट इज ओके कि वो सेमिनार जाते रहे जिनका गोल फाइट का है। स्पेशली जो है नॉर्मल जो फिटनेस के लिए भी आ रहे हैं, तो भी हम 6 मंथ में सेमिनार रखते ही है ओवरऑल। ओके। तो हम तो चाहेंगे अभी तो एसएफएफ भी चालू करें सेमिनार्स रखना। सेमिनार्स करेंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा। Okay. अभी राइट ना हमें अपना प्रो फाइट्स के फाइट नाइट्स रेगुलर शेड्यूल बेसिस पे लाने हैं। यस, फिर करना ही है, स्वतंत्र ग्रुप का जिम भी करना है, आपके साथ Yes. डिसाइड भी किया है, वो सब यस, करना है। थैंक यू। बट धीरे धीरे करेंगे, Okay. स्टेप बाय स्टेप। यस, सो राहुल जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा नेक्स्ट कि हाउ डू यू बिल्ड अ फाइटर फ्रॉम जीरो टू प्रो? 0 to pro we start with amateur boxing. Start with amateur boxing, एकदम ही नया है, so we start with most traditional kung fu way of fighting और कराटे way of fighting। दोनों का जो सिलेबस है वो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है, जहाँ पे बेल्ट्स के ऊपर किक किए जाते हैं। बराबर। उसमें हम उसका बेसिक्स किक्स और स्ट्राइकिंग देखते हैं, उनका स्ट्राइकिंग कैसा है, बिलो द बेल्ट है, फिर उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉक्सिंग, बेसिक जैब, क्रॉस, हुक, पंच। उस पर हम 3 मंथ देखते हैं, उस पर 6 to 7 मंथ काम करते हैं। अभी तो बहुत क्विक हो गया है, 2 to 3 मंथ में वो कवर अप कर लेते हैं, बिकॉज 5 to 6 डेज क्लासेस होते हैं बराबर। इन अ वीक। सो वो डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ईजी हो जाता है। और देन वी गो फॉर लो किक्स लाइक किक बॉक्सिंग में मो थाई, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, फिर डायरेक्ट उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एमेच्योर किक बॉक्सिंग। बराबर। देन वी गो फॉर बेसिक K1 जिसको बोला जाता है, रिंग में ही होता है, पर उसमें गार्ड नहीं होता है। लाइक एमेच्योर बॉक्सिंग में वी हैव अ गार्ड, लेग गार्ड एंड दिस वे, बट व्हेन वी गो फॉर K1 इट्स लाइक एन रिंग, MMA रिंग, बट किक बॉक्सिंग। जो ग्लव्स होगा वो बॉक्सिंग होगा एंड इट विल रन नॉकआउट, उसमें ग्रैपलिंग नहीं होती। ओके। हार्ड हिट होता है इसमें क्या इसमें नीज और एल्बोज भी यूज होते हैं? नहीं, K1 में नहीं होते। ओके, बट ये है जो स्ट्राइक रहता है वो बहुत हार्ड होता है। ओके, लो किक्स होते हैं लाइक मोथाई के जो भी लो किक्स हैं
वो है, इट्स नॉट समथिंग स्टैम्प किक, बट लो किक जो थाई पे किक पड़ती है वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करती है। कोई एमेच्योर बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग में नहीं रहती, और जो Okay. K1 रहता है उसमें फुल्ली ऑन रहती है, Okay. स्ट्राइकिंग फुल हार्ड इनफ रहता है। एंड देन वी इंट्रोड्यूस विद डेब्यू फाइट, Okay, debut fight for amateur fights. एमेच्योर MMA. फाइट्स। उसके बीच में भी उसका एक BJJ का सेमिनार होता है, यहाँ पे वो सिर्फ ग्रैपलिंग सीखता है और उस पर कम्पीट करता है। अगर उसमें ब्राउन आया है तो समझो उसको और वर्क करना है, और बराबर। 2-3 वर्क करेगा। उसमें जब तक वो सिल्वर और गोल्ड नहीं लाता है या सिल्वर तक भी नहीं जाता है, फिर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि हम डायरेक्टली उसको केज में भेज दें। बराबर। वेरी रिस्क वे फाइटिंग, चाहे वो यूथ करे हम्म, चाहे वो एडल्ट करे। बराबर। एक उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, जब तक प्रो तक पहुंचने के लिए उसे एमेचर भी पहले बहुत सारे Yes, खेल के और लेना चाहिए। बेसिक्स भी अगर उसने किया भी नहीं है फाइट्स, तो उसको फर्स्ट बेसिक्स भी 3 फाइट्स कराना ही चाहिए कोच को। बराबर। इट विल टेक टाइम, आपको लगेगा वो चीज़ है, बट आपको वो करवा लोगे आई थिंक इट विल बी इजी। वो तो फाइट बोलेगा यार मुझे फाइट करना है, मुझे फाइट करना है। फिर इंजरी भी आ गई तो वो आप कोचेस और एकेडमी पे आती है। बराबर। तो इसकी वो चीज़ देख के आपको उसको जीरो से हीरो बनाना है। हाँ। सो आपको क्या लगता है, व्हाट डू मोस्ट ऑफ द कोचेस, जैसे आप कोच हो इसलिए मैं आपको एक कोच वाले सवाल Yes, पूछता yes, हूँ, yes. ठीक है? तो यूजुअली क्या होता है कि काफी सारे कोचेस अपने फाइटर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कराते। Yes. उनको इंजरीज हो जाती है या एक फाइट खेलने के बाद बच्चा चला जाता है। Yes. तो आप ये चीज के बारे में कैसे बताओगे? इज इट द फाइटर का लुकआउट है या वो कोच सही से ट्रेन नहीं करता? आई थिंक जहाँ तक कोचेस ट्रेन करते हैं वो बहुत लाइट स्पार करते हैं, उसमें टेक्निक्स पे ज़्यादा काम होता है। बट मोस्ट ऑफ देयर अगर कोच नहीं है और वो खुद से स्पार कर रहे हैं, अगर कोच नहीं है हम तो स्ट्रिक्टली मना करते हैं। किया भी है तो हम डांट देते हैं, बिकॉज उसमें इंजरी ज़्यादा करते उसी में होती है। बराबर। बिकॉज आपका जो ह्यूमन का स्कल या हैंड बना है वो 500 फाइट्स के लिए बना है। तो आप आपस में लर्निंग प्रोसेस पे करोगे कि फर्स्ट अगर मैं हीरेन सर के साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ तो अभी शो भाई इतना इम्पैक्ट चलेगा। सो पार्टनर ड्रिल वैसा होता है कि नहीं हाँ इतना चलेगा, इतना लोकिंग चलेगा, हाँ चलेगा। सो कितना भी अगर हम लोग फ्लुएंट जाए तो पावर उतना ही होना चाहिए, 20 to 30%। बराबर। इसमें ही मोस्ट ऑफ टाइम इंजरी हो जाती है, बिकॉज वो सेकंड या थर्ड राउंड में आपस में पावर निकालना चालू हो जाता है। यूथ को ऐसा लगता है या यंग को ऐसा लगता है कि मैं इधर कर लूँगा तो उधर आराम से कर लूँगा, बट वैसा नहीं वर्क होता है। इट इज़ अ कम्प्लीटली चेंज वर्कआउट। तो जो मोस्टली इंजरी या जो भी होता है वो इसलिए होता है कि यार वो एब्सेंस में फाइट्स कर रहे हैं और वो आपको बता देंगे नहीं सर मैंने साइकिलिंग किया तो मेरा पैड ट्विस्ट हो गया, आपको मालूम पड़ा नहीं वो कहीं और पे या पार्क में किसी के साथ चालू हो गया। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, हम कोई किसी एकेडमी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट मोस्टली एकेडमी तो चाहती है कि वो लाइट स्पार करें बराबर। और बच्चे को 1 साल रेडी करें, 6 to 8 month 1 year, जहाँ पे उसको छोटे छोटे टूर्नामेंट्स कराएं, फिर उसको लॉन्च किया जाए। वो कोच के लिए भी अच्छा है, वो प्रमोशंस के लिए भी अच्छा है और फाइटर्स के लिए भी अच्छा है। तो उसको फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ आगे देखना है कि उसको एमेच्योर से प्रो कैसे जाना है। बराबर। ये माइंडसेट कब आता है जब एमेच्योर से प्रो पे जाना है? ये आप बच्चों लोग में कैसे डेवलप करते हो? आई थिंक एमेच्योर में से प्रो अगर गए तो प्रो में उतने है ही नहीं। आई थिंक SFF है, बाकी प्रो में उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा हार्श रियलिटी की बात ही कर लें कि MFM में कितने फाइटर्स हैं जो प्रो कर रहे हैं और वो वेट करके बैठे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम वापस से एमेच्योर आ जाए, कम से कम हमको 10,000 का तो मिल जाएगा। यहाँ पे प्रो में तो हमको मिल ही नहीं रहा चांस। सो ये भी एक है जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन MMA को सोचने की ज़रूरत है। और जो अच्छे फाइटर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है, कुछ तो एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं, ट्रेनिंग एफर्ट। तो जो मेन टैलेंट है वो अभी भी मिसिंग है और जो करना चाहते हैं वो अपने मन मर्जी, आई थिंक आपने भी देखा होगा, वो फाइट करना चाहते हैं, उनको तमीज़ ही नहीं है। आप अप्रोच करने जाते हो, आप वो आपके टाइम पे जब एग्री हो जाते हैं वो अलग होते हैं, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट आते हैं उनका एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता है। बराबर। तब बोलते हैं बाप रे ये कैसा था, मैं तो गया था कुछ और लेने। ये चीज़ ऐसे प्रमोशन एज एन इवेंट, सो वो चीज़ दोनों झेलते हैं, वो एकेडमी भी झेलता है, वो प्रमोशन भी झेलता है। तो इट्स डिपेंड ऑन प्रॉपर एटीट्यूड फाइटर का क्या है। बराबर। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी SFF 1 में। यस, आपको पता रहेगा Yes. तो ऑपोजिट फाइटर था। यस यस, तो एक्सपीरियंस होते हैं, लोग होते हैं और हमें उसको सॉल्यूशंस निकाल के आगे मूव करना मूव करना पड़ता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नहीं, लाइफ में आपने जितना स्ट्रगल किया रहेगा कि आपको थोड़ी सक्सेस भी मिलेगी, आप हम्बल होते हो, आप एरोगेंस नहीं होते। जिसको बैठे बैठा मिल गया वो एरोगेंस है तो वो उसके आगे लर्न नहीं कर पाएगा। आई थिंक हम्बलनेस इज समथिंग लाइक दैट कि नहीं आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न। ये पॉडकास्ट भी था तो हमने बोला कि भाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हमने बोला नहीं यार ठीक है, हिंदी तो हिंदी चल जाएगा। हाँ, कर लेंगे। कंफर्टेबल, Yes. वो भी एक चीज़ है।
कि आप सामने वाले को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो कि यार कूल डाउन हो जाएगा, सॉर्ट इट आउट हो जाएगा। Yes. दिस समथिंग लाइक दैट कि आपका अप्रोच कैसा है, बराबर। अप्रोच हम्बल है, लिटरली आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे, पीपल विल कनेक्ट विद यू। चाहे Yes. कोई भी हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट एमएमए, इट्स ऑल अबाउट व्हाटएवर यू आर डूइंग इन बिजनेस एंड समथिंग लाइक दैट। इफ यू आर समथिंग एबल टू डू, पीपल विल कनेक्ट विद यू। ट्रू। दैट्स व्हाई आपका इतना क्लासेस चलता है वैसे ही विरार में। आप हम्बल हो। मैंने वैसे भी आपसे 1 साल पहले मिला था, तभी मुझे समझ गए थे। कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो स्टिक ऑन रहते हैं, और आप वन ऑफ देम थे थैंक यू जो फर्स्ट प्रो में आए थे एसएफएफ के, एंड यू एंड योर टीम एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट इन द इवेंट। थैंक यू सर। आई थिंक उसमें आई थिंक आपका जो अप्रोच था वो इतना क्लियर था कि डाउट करने का ज़रूरत ही नहीं था। सो एक चीज़ थी जहाँ पे हमको बोला जाता है 3000 एक रजिस्ट्रेशन फॉर मतलब जय भी तो गया, बट द वे ही इज अप्रोचिंग मी, आई थिंक दीप भी था हमारा फाइटर, तो जो अप्रोच किया था वो अप्रोच में था कि वी आर इन। बिकॉज फर्स्ट तो आपने बोल दिया था कि नालासोपारा व्यवसाय विरार में हो रहा है एंड वी आर डूइंग अ प्रो लेवल, सो वी आर इन कि नहीं यार ठीक है ये मैच तो कर लेंगे, जो भी होगा ये मैच तो इवेंट तो करना ही नहीं, बिकॉज इस तरफ कोई नहीं था सर, विरार वैसे में कोई इवेंट हुआ नहीं था, तो वी आर इन कि नहीं यार वो तरफ तो आता है, ये तरफ अगर आप इवेंट कर रहे हो, सो वी आर इन, वी आर द पार्ट ऑफ दैट। यस। वैसे भी मुंबई में होता भी कहाँ है, प्रो कहाँ होता है? प्रो नहीं होता है यार, एमेच्योर होता है। प्रो सिर्फ दिल्ली में होता है, एमएफएल। यस, प्रो तो आई थिंक बहुत कम है जो प्रो लेवल पे फाइट्स रख पाते हैं, बाकी सब तो एमेच्योर है, वो भी उनमें अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन फीस लिया ही जाता है फाइटर्स से, वही चीज़ में उनको ड्रॉबैक की जाती है ओवरऑल। बराबर। सो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, यस। हाउ डू यू ट्रेन योर फाइटर्स? लाइक अभी एमएमए में काफ़ी वॉयलेंस है, तो आप अपने फाइटर्स को कैसे ट्रेन करते हो कि वो वॉयलेंस को हैंडल कर सके? आई थिंक वॉयलेंस को तो हैंडल नहीं कर सकते, जितना हो सके उतना मेडिटेशन बेसिक्स तो हम लोग वो करवाते हैं, जिससे एंगर बहुत कम हो जाता है मेडिटेशन, और ब्रीथ एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ब्रीथ आउट, वो तो बॉक्सिंग में तो बेसिक ही है, तो उससे लिटरली अगर कोई एंगर में आ भी रहा है या कर भी रहा है, तो यू गेट टू नो कि नहीं यार ये नहीं सीखा हुआ है, ये सिर्फ आ रहा है यार, चाहे कोई ट्रेन में हो गया, ट्रेन में तो हम यही बोलते हैं कि 15 दिन आप क्या लगाओगे उसमें, बराबर। मेक अ सॉरी एंड यू जस्ट वॉक ऑफ, बिकॉज दिस इज नॉट द वे यू वांट टू डू, यस, वर्क ऑन योरसेल्फ। कभी धक्का भी लगा है तो उसमें क्या है, जिसको लगा भी है वो इतना शेर के साथ बन जाता है कि भाई उसको मालूम है मेरे 15 बैकिंग है, सो ही विल ना चाहते हुए भी वो बदतमीज हो जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी हमको क्वेरीज आई थी कि सर क्या करना चाहिए, बोले सॉरी मिल के निकल जाओ, इट इज़ द बेस्ट वे टू क्विट आउट, और वहाँ पे आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। बराबर। हाउ वी विल हैंडल दिस, बिकॉज वो ग्रुपिज्म है, उनका एरोगेंस है, अब कोई किसी से लड़ के आया, किसी से क्या करके आया, सो वो एक चीज़ आ जाती है। बाकी ट्रेन में कैसा करता हूँ, आई जस्ट ट्रेन विद मेडिटेशन, ओके, फर्स्ट मेडिटेशन, क्लोजिंग में भी हमारा मेडिटेशन स्ट्रेचिंग होता है, 1 डे 1 गोल रहता है हमारा, अगर बॉक्सिंग है तो बॉक्सिंग पे जाते हैं, किकिंग है तो किकिंग पे जाते हैं, ग्रैपलिंग है तो ग्रैपलिंग पे जाते हैं, उसमें भी इंटरमीडिएट, बेसिक और प्रो लेवल, तो तीनों का कैटेगरी हमने अलग रखा है। नहीं तो जो बेसिक्स वाले हैं वो इंटरमीडिएट के साथ हो गए तो वो ट्विस्टिंग हो सकता है, किक बॉक्सिंग में भी वो इंजर कर सकते हैं अपने आप को, बिकॉज स्ट्राइकिंग उनका हार्ड है, बराबर। इवन सेम गोज फॉर बीजेजे, अगर लॉकिंग वगैरह कहीं है उसने नहीं दिया तो वो डायरेक्ट शोल्डर डिस्लोकेट वगैरह भी हो सकता है, तो वो चीज़ है कि हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई बेसिक्स है, इनको सिर्फ बेसिक्स पे रखो, कम विथ अनदर सेशंस, जो भी हमारे प्रो लेवल के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग सेशंस अलग रखते हैं, सो आई ट्रेन विद देम डिफरेंट बैचेस। नहीं, बराबर है, वैसे भी एक काम फाइटर को काम होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, Yes, रादर देन जहाँ बाहर जाके वो सीखा हुआ सब कुछ बाहर ट्राई आउट करे। ट्राई आउट करे तो क्या है, वो तो आई थिंक डैमेज ही करेगा, वो एकेडमी को डैमेज करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं पुलिस केस है जो हम लोग फर्स्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही बोलते थे कि भाई ये सब चीज़ नहीं इंजीनियर होनी चाहिए। ये भी एक है कि कहीं कहीं जगह पे एमएमए नहीं सिखाया जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो गया, वो होम वायलेंस पे या किधर भी, तो कोच को जाके बेचना पड़ सकता है। अच्छा, ये सब चीज में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पता है, एक वो स्टूडेंट के ऊपर या जो बंदा है फाइटर उसके ऊपर वो कम्प्लीटली मैटर करता है। Yes. ये एक परसेप्शन मैं खुद रखता हूँ, बट कोच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ जो उसको गाइड करना चाहिए। वो एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि फाइटर को काम करने वाला, काम रखने के लिए और उसको एक डिसिप्लिन लाइन पे लाने के लिए कोच की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। यस डेफिनेटली, और हम तो यही बोलते हैं कि कहीं भी आप अगर आप सेमिनार्स के लिए भी जा रहे हो, जस्ट लर्न गुड स्टफ। अगर आपका एनिमी हार गया है, हार भी गया है वो आपसे, तो आप उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। उसका कोई एक मूव जो आपको अच्छा लगा हो, चाहे उसका पंचेस हो, स्ट्राइकिंग हो, ग्रैपलिंग हो, जहाँ पे उसने होल्ड किया हो,
इट्स लक बाय चांस कि आपने गेम जीत लिया या आपने टेक्निकल स्ट्राइकिंग इतना अच्छा कर ली कि लास्ट का उसका मोमेंट काम नहीं आया, लेकिन आप उससे भी कुछ सीख सकते हो कि क्या स्ट्राइकिंग किया था उसने। राइट, आई वॉज नॉट नोकिंग कि वो वहाँ से आके वो हुक मार सकता है, बट वो हुक अच्छा था। बराबर। दैट यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन। हम्म, अच्छा, एक लड़का भी, एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ सिखा के जा सकता है हम्म, स्ट्राइकिंग के बारे में, अगर उसको नॉलेज एक बेसिक चीज़ का है। सो यू कैन इंस्पायर बाय एनीवन, राइट, एनीवन। इट्स नॉट समथिंग कि आपको कोई गुरु या आपको कोई एक आइडल की ज़रूरत है। आपका इंस्पायर डे टू डे आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। बराबर। आई थिंक उनमें आपको दिख जाएगा वो जो स्ट्रगल करते हैं फाइनेंस के लिए, जो भी मेरे तो पेरेंट्स ने किया है वो चीज़ के लिए, सबके सबके पेरेंट्स parents ने करते किया हैं। है। सो वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो पहले उनके हम्म, कर लीजिए, उनके बाद आप अपने कोचेस और गुरु के देखिए, आप रिस्पेक्ट कीजिए। आई थिंक आप लर्न कीजिए, आपको कोई ना कोई आपको आगे लेके ही जाएगा इंडियन एमिलिट्री फाइटर्स में, जिनको पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो। बट विलियमनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं हिरेन सर अभी बोलूँगा, जिनको हमने चांस भी दिया कुछ फाइटर्स को, सो ऐसा था कि बैक बीटिंग में वो हमारे ही बुराई कर रहे थे। अभी आप बोलेंगे बहुत हार्श रियलिटी हाँ, उसमें। तो हम लोग थे कि यार अभी इसको चांस दिया है, कोचिंग भी कर रहे हैं और अच्छे वेल इंस्टीट्यूट पे कोच कर रहे थे, तो स्ट्रीट फाइटर्स को कोई नहीं देता है। बराबर। बस द एकेडमी की चलो यार कर लेते हैं सर, शायद चलो उनको जॉब मिला है तो हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं। और वो एक दो चीज़ भी है जो डिपेंड ऑन कि फाइटर्स का क्या अप्रोच है बराबर। कोच के पीछे। हम्म, सो इट्स नॉट समथिंग कि कोच तो अच्छा ही सिखा रहा है, लेकिन अगर फाइटर की का एटीट्यूड गलत है यंग एज में, या उसको स्किल्स नहीं है, उसको तमीज़ नहीं है, तो यू कैन हेल्प आउट विद दैट। बराबर। सो राहुल जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपके पास 20 एज के बच्चे आते रहेंगे, टीनेजर्स से लेके एडल्ट्स तक, आप उनके पेरेंट्स के साथ कैसे मैनेज करते हो जब कोई फाइट होता है, जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल फाइट खेलने जाते हो, एमेच्योर, भले एमेच्योर ही सही, कुछ ना कुछ तो इंजरीज होती ही रहेगी, थोड़ा बहुत तो लगता रहेगा, तो आप पेरेंट्स को कैसे हैंडल कर लेते हो? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो इंट्रोड्यूस होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं कि ये तरह का कौन सा फाइट है। ट्रेडिशनली उन्होंने कराटे या कुंफू देखा रहता है जहाँ पे सिर्फ स्ट्राइकिंग होती है, कोच बीच में आ जाता है, एक पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, सो वो कन्विंस में ही टाइम चला जाता है। देन ये गो टू नो अरे हाँ दिस इज समथिंग लाइक गुड वेल, मेरी लड़की अगर किसी को पकड़ के नीचे गिरा रही है, ही वांट्स ट्राई टू ग्रैपल हिम और वो होल्ड करके रख रही है, तो यस रियल सिचुएशन में वो काम आ जाएगा। बराबर। दिस इज द वे वी अप्रोच इट। दिस इज समथिंग लाइक इन रियल लाइफ सिचुएशन में इट्स नॉट समथिंग पंचिंग एंड किकिंग, इट्स ग्रैपलिंग आल्सो। राइट। To just help overall the body. It's not only overall upper body like boxing or legs. It's overall आप बेच के देखिए और फिर आप अपने ट्रेडिशंस पे हम देखते हैं कि उनको कहाँ पे रेडी कर सकते हैं। किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में मोस्ट ऑफ देम इंजरीज को लेके काफ़ी है, बिकॉज एमएमए इज प्रोन इंजरी राइट। माना जाता है, तो वो चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि इंजरी ना हो। और वो डर भी रहता है पेरेंट्स में कि यार इंजरी हो गया तो हम बंद कर देंगे क्लासेस। सो ये है कि कन्विंस में तो बहुत टाइम जाता है अपने प्राइवेट सेशंस में बुलाने के लिए, या अगर स्कूल्स में भी कर रहे हैं तो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है उसमें, तो उनको लगता है कि हाथ ट्विस्ट हो गया, क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे। और कोच तो बोलेगा मैंने ट्रेन किया था समथिंग, कहीं कहीं जगह पे वो ठीक भी है, बट वी कन्विंस है कि नहीं शी इज अ ग्रेट डूइंग, बता दिया उसको। आई थिंक एक अच्छा हिस्ट्री क्रिएट करेगी फ्यूचर ऑफ एमएमए। नहीं हुआ तो आई थिंक उसको एक अच्छा स्किल्स तो मिल ही जाएगा लर्निंग। राइट, एक्सपीरियंस मिलता है। यस, बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है केज के अंदर आने के बाद कि रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। yes. मतलब बी नॉट बी एग्जैक्टली इन अ फाइटिंग सिचुएशन, बट इमोशनल सिचुएशन या प्रोफेशनल लाइफ के सिचुएशन में yes. यू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट। आपको कुछ भी करके केज के अंदर तो उतरना है। लाइफ के लाइफ एक केज है, उसके अंदर आपको खेलना है। yes. वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो है। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट द टीचर्स, स्पेसिफिकली यू कोचेस, कि आप बच्चों को ट्रेन करते हो और आप उनको एक एक्सपीरियंस देते हो केज में खेलने का। यस, आई थिंक अभी पार्टिसिपेशन 16 बच्चों का पार्टिसिपेशन हुआ था फादर एंगल से। ओके। आधे बच्चे भी गए थे, मुर्जी भाई जो कि विराट से नियर बाय मुर्जी भाई रुस्तम जी, बट आई थिंक रिकॉर्ड रहा है फादर एंगल से हमारे 16 एमेच्योर एमएमए के लिए गए थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूथ एमएमए होता है। इसमें 15 वेर समथिंग इन गोल्ड सिल्वर। ओके। सिर्फ एक ही बच्चा जो फर्स्ट फाइट भी नहीं जीत पाया, वो रिवर्स रहा है, तो वो एक अच्छा रिकॉर्ड था कि हमको लगा कि नहीं यार यहाँ पे टैलेंट है। सो देयर समथिंग लाइक दैट कि वो कर सकते हैं फाइट, आगे उनको कोई स्पॉन्सरशिप मिला या ट्रेनिंग मिला, दे कैन गो फॉर। तो आई थिंक यूथ में तो आई थिंक ईस्ट में तो ईस्ट या वेस्ट या जो भी हो गया, एमएमए इज हाइपिंग नाउ। राइट। पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस कि नहीं यार हमको फ्री स्टाइल आर्ट सीखना है। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि आप मुझे
कराटे या कुंफू के बैकग्राउंड में डाल दो और मैं सिर्फ बेसिक्स करता रहूँ, नहीं, पीपल वांटेड टू लर्न, बेसिकली यूथ वांट टू लर्न एमएमए, जहाँ पे वो खुद क्वेश्चन अप करके आते हैं, मेरा गूगल पे बिजनेस है, मुझे आते हैं वैसे ही से, कुछ जो सिर्फ वीकेंड्स के लिए आते हैं ट्रेनिंग के लिए वैसे ही से, नहीं, आई वांट टू ट्रेन विद समथिंग लाइक दैट, आई एम वर्किंग बट आई वांट टू लर्न एमएमए। यस, एमएमए इज समथिंग ग्रोइंग स्पोर्ट्स नाउ इन इंडिया, 20-25 इयर्स तक कोई पीछे खींच नहीं सकता है इसको। बराबर 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 बात है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, दिस विल बी ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। जैसे मुझे पता है आप महादेव के बड़े फॉलोअर हो, यस, तो आप कैसे कनेक्ट करते हो एमएमए लाइफ को महादेव से? लाइक वो तो अपरंपार है, यस, ही इज एवरीवेयर, ही इज ऑलमाइटी, यस, ओके, आई थिंक उनमें बहुत सारी बोलते हैं ना गुस्सा है उनमें, बट वो बहुत काम रहते हैं, राइट, आई थिंक उनका जो भी अपने, आई थिंक मैंने तो जो भी सीरीज देखी है, मैं 2 ज्योतिर्लिंग ही जा पाया हूँ, सो आई थिंक हाँ 2 ज्योतिर्लिंग आई थिंक, और मैं डेली विजिट करता हूँ मंडे, बिकॉज आई एम वेरी शिव भक्त। ओके, हर मंडे आप जाते हैं? एवरी मंडे आई थिंक आई गोज टू देम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स वो खुद हर लेते हैं, सो आई थिंक इज ऑन ऑलमाइटी, वो तो सबके बिलीव है आई थिंक, बट ये है कि इतनी पावर होने के बाद भी जो हम्बलनेस आती है, द वे ही गिव्स, वो देना जानते हैं, then come to way, so I think उनसे वो चीज सीखती है कि just go on and go with the flow, it is something like that कि अगर आपको मालूम है कि कोई चीज आपके फेवर में नहीं हुई तो आपको दुख नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है यार, इट इज ओके, मैंने ट्राई तो दिया, ट्राई चाहे वो कोई भी इवेंट हो, चाहे आपने कोई एक इवेंट किया रहेगा या हमने अपने डे टू डे लाइफ में किया, so it's just keep going, बराबर with the flow कि ठीक है आज हमने ये किया है, I just go, हर हर महादेव। ये चीज एक्चुअली कैसी है ना, हर एक आने वाले जनरेशन से और आने वाले लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन एक बार अटेम्प्ट तो करके देखो, हर एक चीज लाइफ में अटेम्प्ट करके देखनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए, आप करोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या होने वाला है, तो ट्राई कर लेनी चाहिए। और वो चीज आपने सही से कनेक्ट भी की थी महादेव जी से, कि वो एक है कनेक्शन होता है, कनेक्शन होता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कनेक्शन बिटवीन हिम, आई थिंक वो तो आई थिंक मेरा और उनका ही है, ये जो भी है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें बीच में किसी को लाते नहीं है, नहीं मेरा और उनका कनेक्शन है, यू बिकम हम्बल, अगर आप शिव भक्त हो प्रॉपर, यू बिकम वेरी, आपको ये नहीं पता है कि कोई क्या लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, क्या चल रहा है, यू कीप ऑन मूविंग, राइट, वो विद द फ्लो, डिटैचमेंट भी एक चीज है जो वो कैरी ऑन करते हैं, तो वो भी चीज है कि कोई फाइटर चला भी जाता है तो बोलते हैं ना अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन, नहीं यार ठीक है जो लिखा है वो हो जाएगा, डिटैचमेंट वो परफेक्टली, नहीं यार हमने सीखा है इसको, ये उधर चला गया, गो गो विद दैट, आई एम डूइंग माय वर्क, बराबर, यही चीज के ऊपर हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा क्वेश्चन आपसे है, एज अ कोच, आपका जब फर्स्ट टाइम आपका कोई बच्चा केज में उतरा था, तो how was the experience coaching for the first time, and what was the result of the fight? I think Paras Sharma was there, I think in 2019 pro level का ही I think amateur match था, so we were very excited because हमने first time coaching किया था मैंने, because I was thinking कि मेरा एक बच्चा एक fighter केज में जाना चाहिए फाइट के लिए, so it was very excitement, so we have a very less knowledge of grappling, हम स्ट्राइकिंग के बलबूते पे ही गए थे कि स्ट्राइकिंग अच्छा है उसका, ओके ग्रैपलिंग भी था उसका, बट इट वाज नॉट पॉलिश, ही लूज इट बट ही वाज अ वेरी डोमिनेटेड मैच, ओके, वो मैच में आज भी मैं देखता हूं तो मैं तो यार आई हैव अ फ्यू नॉलेज बट द वे ही होल्डेड द फाइटर्स, बिकॉज़ उसके लेटर ऑन जो फाइटर्स उनके सामने आया था उन्होंने इतने ब्रूटल नॉकआउट्स किए थे, बट द वे बोलते ना कि वो भी पंजाब से था, तो ही नो कि उसने प्रॉपर्ली होल्ड करके रखा था, सो वो एक्सपीरियंस होने के बाद भी उसने 2-3 फाइट्स की, उन्होंने जो फर्स्ट फाइट आपने किया है बिंदास, तो फिर वो नहीं था, तो एज अ कोच भी हमको अच्छा लगा था कि इट वाज वेरी समथिंग न्यू एक्सपीरियंस, वेरी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, कि नहीं यार क्या हो सकता है, 2 राउंड है, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड क्या करेंगे, क्या टैक्टिक्स पे करेंगे, इट वाज अ न्यू एक्साइटमेंट एंड फियर, गो फॉर इट, ट्विस्ट, टू बी ऑनेस्ट, एक्साइटमेंट एंड फियर, व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज़ इंजरी हो जाएगी, फर्स्ट फाइट है, फाइटर को कुछ ना हो जाए, उसको भी, ही वाज आल्सो अ वर्किंग पर्सन, उसको क्या हो जाएगा, कुछ तो नहीं रहेगा, तो वी आर क्वेश्चनिंग अबाउट कि नहीं स्ट्राइकिंग पे रखेंगे, जितना है उतना सेफ गेम करेंगे, बट द वे यू एंटर इन रिंग्स इट्स कंप्लीटली चेंज योर माइंड, बराबर, आपको टेक डाउन्स और आपके टैक्टिक्स आने चाहिए, फिर सेकंड या थर्ड फाइट में यू नो कि आपको क्या करना है, यू कोच देम, फर्स्ट राउंड अगर अच्छा भी नहीं गया तो सेकंड राउंड में डोमिनेट कर, पॉलिश हिम, टेक हिम इनटू द फ्लोर,
लेके आओ उसको फ्लोर पे, he doesn't have a good striking, but grappling अच्छा है, take to the floor, अगर उसका grappling अच्छा है, stay away from him. तो this is something that as a coach वही आप करोगे, आप क्या करोगे? सो अगर समझो कोई आपका बच्चा हार जाता है फाइट, ठीक है, तो आप उसको मोटिवेट कैसे करते हो? Yes, train hard, go more for seminars. जो गलती की है आई थिंक वो क्लिप भी रहता है, आप देखिए आप कहाँ पे आपने गार्ड छोड़ा है, जहाँ पे आपको उसका जैब या क्रॉस लगा है. सो दिस इज द बेसिक चीज़ है. ये चीज़ पे अभी भी आऊँगा मैं कि अभी एक फाइट हुआ था इंडियन सुपर फाइटर्स में. तो उसमें जो फाइटर्स था वो बोल रहा था मैं 8 सेशंस कर रहा हूँ 1 मिनट्स के 8 फाइटर्स के साथ. और जब मैच देखा तो इट वाज लेसर देन 20 सेकंड्स. सो जब मैंने मैच देखा, सो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट कि वो चीज़ सही है या गलत है, बट मैं वो एक मेजर पे चला जाता हूँ. मैं क्वेश्चन कोच को भी करता हूँ कि 8 सेशंस वो बोल रहा था कि 8 मिनट्स के वो सेशंस कर रहा है अलग अलग फाइटर्स के साथ हर 2-2 मिनट में. सो व्हाई द 20 सेकंड्स ही गेट एन नॉकआउट, व्हाई हिज हैंड्स गोइंग लाइक दिस, जो वो मेरे टाइम पे कर रहा था. सो आई क्वेश्चन इन दैट कि आपने वो करेक्ट नहीं किया था, या अगर वो था तो फिर ये क्या था. सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपको वापस से वर्क करने की जरूरत है. वो 8 सेशंस भी गलत नहीं अगर आपका गार्ड ऊपर नहीं है तो. बेसिक वो भी आप मैच अगर मैं आपको भी दिखाऊंगा, दिस इज अ सीनियर मिस्टेक, वांट्स टू लर्न मोर, बराबर, वांट्स टू लर्न मोर, बट द वे ही इज टेलिंग, द वे हमने को मालूम पड़ा कि नहीं 8 सेशंस कर रहा है, तो इट इज अ वेरी थिन लाइन कि अगर उसका हैबिट नीचे है तो ही वांट्स टू गेट नॉकआउट इवन दो उसका कितना भी अच्छा स्पारिंग होने दे, बराबर, बिकॉज़ वन कनेक्ट किक एंड पंच, नो डाउट, बराबर. इट्स नॉट ओनली प्रो लेवल भी नहीं है वो कि वो खड़े होकर वापस बोलेगा नहीं आई वांट टू फाइट. इट्स एन अमेच्योर, यू गेट नॉकआउट, फाइट्स ओवर. बराबर. सो जैसे आप बोल रहे हैं आपने काफी सारे अमेचर्स खेले हैं, आपने काफी सारे लोकल फाइट्स खेले हैं, जैसे डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है जो आप स्कूल से जाते हो, या प्रो लेवल जो आपने एसएफएफ के साथ खेला है. अभी मुझे एक बात पूछनी थी आपको, ये जो सीन में पैसे आते हैं फाइटर्स को, जैसे फाइटर्स की इनकम में फाइट जीतने के बाद आने वाले पैसे, फाइट में खेलने के बाद होने वाली इंजरीज, ये सब चीजों को आप कैसे फाइटर्स को इवॉल्व करते हो, ये सब सारी चीजों? आई थिंक मोस्ट ऑफ फाइटर्स तो क्विट ही कर देते हैं. ओके. और एमेच्योर में ही इतना नहीं रहता है कि वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फाइट्स कर लेते हैं. हार्डली उनको मिल पाता है फाइट्स जहाँ पे वो पेड फाइट कर सके. पे फाइट में मतलब वो भी वो ऑर्गेनाइजर को पैसे देते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते. यस, उसमें भी इंजरी जब हो जाती है तो ये क्वेश्चन इट्स कि नहीं यार इट इज ओके कि इट इज जो मैं कर रहा हूँ इट इज ओके, आई फाइट फॉर मोस्ट ऑफ फाइटर्स वहाँ पे डिले हो जाते हैं जिनका स्किल्स काफ़ी अच्छा है, जो आई थिंक कोचिंग में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. कैन एक्सप्लोर जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रेन कर सकते हैं, बट सिस्टम जो इंडियन एमएमए का है वो वैसा नहीं है एस्टैब्लिश की लोग खोल के बैठे वी सपोर्ट यू, ट्रेन देम, समथिंग लाइक दैट. बहुत फ्यू एकेडमीज है और जो है भी वो आपस में ही कर रहे हैं सब, अपने ही फाइटर्स, अपने ही कोच, उनके ही क्लासेस, पार्टिसिपेशंस भी उनके आ जाते हैं. जब हाइप होता है तो आउट ऑफ स्टेट से फाइटर्स आते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एमेच्योर. ओके, बहुत फ्यू एमेच्योर है लाइक प्रो एमएमए कैन गिव द कैश प्राइस ऑन द केज, जो भी भले वो 1 लाख हो या 2 लाख हो. बहुत कम एकेडमीज है. निमित सामी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज एमेच्योर, बिकॉज उनके लिए कोई नहीं सोचता. प्रो के लिए तो फिर भी ठीक है, एमएफएन है, बट एमेच्योर में जो उन्होंने लेके आया क्रेज वो एक चीज़ अच्छी है. और रूल्स भी काफ़ी क्लियर है डेब्यू के, अगर डेब्यू है तो वो रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, अगर उनको मालूम पड़ा रिकॉर्ड तो फाइट भी नहीं होने देते. तो वो एक चीज़ अच्छी लगी थी. एक्सपीरियंस फाइटर के डेब्यू में नहीं रहा, बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस, ही इज एन डेब्यू, बराबर, और उसने छुपा के रखा है उसका रिकॉर्ड ओवरऑल. तो वो जब मालूम पड़ता है कि आपने किया है तो फिर आप एमेच्योर लड़ रहे हो, आप डेब्यू के साथ कैसे लड़ सकते हो, कुछ नया के साथ नया लड़ना चाहिए, बराबर, फाइट्स में. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. ही क्वेश्चन, ही आंसर इट समथिंग लाइक दैट. ही पॉज द फाइट. अगर कोई प्रो खेल के फिर एमेच्योर में आया तो ही पॉज द फाइट. प्रो फिर खेल के एमेच्योर में आया, कैसे ऐसे भी फाइटर्स आए हैं हमारे इसमें. जब उनको उनके एकेडमी में जो भी रेफरी या ऑफिशियल्स थे, वो भी एक चीज़ है. सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपका प्रेसिडेंट क्या है, आपका जो मेन ऑफिशियल्स है वो क्या है. ही इज वेरी एक्टिव कि उनको बोला तो ही टेक दैट एक्शन इमीडिएटली. इट डजंट वेट फॉर एनीथिंग. अगर कहीं पे क्लचेस भी लग रहा है फाइटर्स के, ऐसे भी ग्रुप हमने देखे जहाँ पे हमको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है. नहीं, दिस इज समथिंग लाइक दैट. हमें तो हमको रेफरी था कि इधर करना है, इधर खड़ा रखना, फाइट किया, ज़्यादा हाथ मारा, रुको. Like I'm talking about kickboxing. The way he grounded himself as an official also, it is a very new experience कि आपको easy हो जाता है कि you know your stuff, because आपका खुद का examinations हुआ है officials में. So you know your stuff क्या है, क्या चीज़ में गलत होना चाहिए, nails उसके check करो,
चेक करो वैसलिन लगाया कि नहीं, ये बराबर। ग्राउंड गार्ड की नहीं, एज एन ऑफिशियल उसने ग्लव्स पहने हैं कि नहीं. बराबर. So he trained them something like that. फिर जब वो इवेंट का दिन आता है, it's very easy कि आप फटाफट फाइट्स खत्म करते हो बराबर. एज एन एमेच्योर. सो मेरा ये सवाल रहेगा कि देखो जैसे हर एक जन एमएमए फॉलो कर रहा है, एमएमए प्रैक्टिस कर रहा है, वो 100% एमएमए के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते. यस. उनको काम करना पड़ता है, जॉब जाना पड़ता है, Yes. या कोई अदर एक्टिविटी करनी पड़ती है जिसकी वजह से उनका रेगुलर डे टू डे लाइफस्टाइल चलते रहे. चलता है. यस. आपको क्या लगता है कि जैसे प्रमोशंस आ रहे हैं, नए नए प्रमोशंस आ रहे हैं, क्या एक फाइटर अपना लाइफ एमएमए के ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है? नो. और क्यों? आई थिंक वो इस वजह से कि जो भी प्रमोशंस आ रहे हैं एमेच्योर में, वो सब आई थिंक रजिस्ट्रेशन पे प्रमोशंस है मोस्ट ऑफ. रजिस्ट्रेशंस मतलब आप थोड़ा खुल के बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन खुल के बोलेंगे तो आई थिंक उसको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है फाइट्स के लिए. ओके. ओके. सो उसमें उसको बाउट दिया जाता है कि अगर नहीं हुआ तो वो सिल्वर जीतेगा. सो अगर एक फाइटर्स आ रहा है तो वो उतना बैकिंग करके आएगा कि मुझे सिर्फ 8 से 10 फाइट्स करने हैं, उसके बाद शायद मेरा कोच मुझे पेड फाइट के लिए लेके जाएगा जो प्रो लेवल पे होता है ओवरऑल. सो मोस्ट ऑफ एकेडमी है ही नहीं, और जो एकेडमीज पे कर भी रही है एमेच्योर, तो वो एकदम क्रूशियल है कि डेब्यू फाइटर्स या 2-3 साल का एमेच्योर फाइटर्स वो नहीं कर सकता. सो वो एक सिंगल डेब्यू फाइट्स करके, एक सिंगल बाउट फाइट करके दे टेक देयर मेडल्स एंड दे सर्वाइव समथिंग लाइक दैट. तो मोस्ट ऑफ फाइटर्स उस वजह से भी है, और एकेडमीज भी ऐसी नहीं है जो फुल फंक्शंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिकॉज एमएमए को भी इतना हाश दिया जाता है कि बहुत कम है जो स्कूल्स में एंट्री दिया गया है एमएमए को, जहाँ पे उससे ज्यादा कबड्डी या क्रिकेट्स में इंजरी होती है, बट एमएमए को बस हम पंच या किक मारते हैं तो वो ज्यादा इंजरी है. हाँ, क्योंकि वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है ना, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है इसलिए. और इंडिया में इतना ज्यादा कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए ओपनिंग हुआ नहीं है, दो देयर इज इट इज द मोस्ट थर्ड viewed स्पोर्ट इन इंडिया राइट नाउ. बट हाँ, एक वो इमेज होता है लोगों का कि वो नहीं हो सकता करके, उस पे फाइटिंग होती है. बट वी हैव टू इम्प्रूव दिस सीन इवेंचुअली, कि एक फाइटर को भी एक रेगुलर लाइफ में जो एक्चुअली डिजर्विंग फाइटर्स हैं, उनको अपना डे टू डे लाइफ एमएमए से होनी चाहिए. दैट इज व्हाट आवर मेन मिशन एंड मोटो इज, एंड वी शुड कंटिन्यूअसली वर्क ऑन विद दैट. सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपने तो कई सारे मल्टीपल फाइटर्स देखे रहेंगे, काफी सारे ट्रैश टॉक करने वाले रहेंगे, और काफी सारे हम्बल रहने वाले रहेंगे. आप क्या कहते हो, एक फाइटर को हम्बल रहना चाहिए या ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करना चाहिए? आई थिंक समटाइम एरोगेंट इट इज गुड, बट वो एटीट्यूड आपके फाइट्स में भी दिखना चाहिए. समथिंग लाइक दैट. हमने जेई में भी एरोगेंस देखा, एरोगेंस इतना अच्छा था, फाइट में तो कुछ दिखा नहीं. समथिंग लाइक दैट. एरोगेंस इट इज ओके, कॉर्नर के साथ देख के आई थिंक कोई भी कर लेता है, कॉर्नर को देख के. आई थिंक उससे थोड़ा सा एरोगेंस आ गया है इंडियन एमएमए में, कि वो है द वे ही शैटर्ड, बट द वे ही वर्कआउट, उसने खुद को चैलेंज किया. ऑफ कोर्स उनका वर्कआउट वैसा है. आई थिंक उनका एक जो मैंने पॉडकास्ट है, कोई एक वीडियो में देख रहा था जहाँ पे उन्होंने फुटबॉल के जो अपने मेन है क्रिस्टियानो, हाँ, उनको बोला था कि मैं इतना पीछे हूँ और मैं टॉप पे आऊँगा एक दिन. उस कॉन्वर्सेशन में मैंने लिटरली केम इन. राइट. सबको वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए एज स्ट्राइकिंग. कॉर्नर भी रिस्पेक्ट कॉर्नर, उनका स्ट्राइकिंग गेम काफी अच्छा है. बहुत सारे अच्छे फाइटर्स आ रहे हैं इंडियन में. आई थिंक व्हाट आई इन्फ्लुएंस अबाउट मी, जो मुझे हार्श रियलिटी में पड़ी, तो फर्स्ट फाइटर्स जो यूएफसी में गया था, लेकिन उसका नाम मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. तो जब वो फाइट करके आया, हार गया था वो फाइट, तो उस पे जो बर्डन थे फाइनेंशियली, वो बहुत क्रूशियल थे, बिकॉज वो आँख से आंसू निकाल देंगे आपको जब पॉडकास्ट, बिकॉज उसके शायद फादर गुजर गए थे, ये थे, तो उनका कमबैक ठीक नहीं हो पाया. उनका अच्छा नाम है, इट वाज आई थिंक अंशुमन जुबली के पहले गए थे. उनका फाइट आई थिंक कोई शंघाई का कोई फाइटर्स था, उनका किक कनेक्ट हो गया था, तो ही वाज द फर्स्ट फाइटर्स. तो जो फर्स्ट फाइटर्स है, जो हार गया है, उसको कोई नहीं जीतता. कैसा ना, लोग सिर्फ वो को याद फर्स्ट फाइटर है जो यूएफसी फाइट पास पे गए थे, ठीक है. He was the first fighter. यस, फर्स्ट फाइटर. और India बिलो द में- बेल्ट, आई थिंक वो टाइम मुझे सिर्फ लगता है कि सिर्फ नया नया ब्रदर्स मूवी आई थी, लेकिन उनसे भी पहले वो जा रहे थे. बट इट इज वेरी प्राउड कि वो गए तो थे कम से कम. देखो कैसा होता है ना, मैंने ये काफी नोटिस किया है. इंडियन, अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंडियन फाइटर गया है बाहर, हार के आ गया. उनके बाद भी शायद से 2 फाइटर्स गए थे फाइट Yes. पास में, और वो भी Yes. सोलो भी हार गए. यस, बट दिस इज अ स्टार्ट. यस. आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि ये स्टार्ट है, दिस Start. इज द बिगनिंग.
कोई भी बंदा अगर फर्स्ट टाइम जाके अगर जीत के आ जाए तो कुछ अलग ही बात होती है। और इंडिया में काफी सारे पॉपुलेशन है, इंडिया इज द टॉपेस्ट Yes. लाइक द हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इतने लोग हैं ना, 3 गए हैं, अगली बार 30 जाएंगे ना, तो उसमें से कोई ना कोई बंदा तो खेल के और जीत के Yes. आएगा। अपने को वो 30 बंदों को जगाना है, 30 बंदों को खड़ा करना है, Yes. एम वो है। हम्म। अभी मेरा भी प्रॉपर्ली एसएफएफ का मोटो यही है कि वो 3 बंदे गए हैं, वही लेवल यूएफसी का लेवल अगर वो इंडिया में हो तो यहाँ पे 300 बंदे, 3000 बंदे, 30,000 बंदे खड़े हो सकते हैं और वो फाइटर जो खबीब और कॉर्नर को भी टफ दे सकते हैं। ऐसे लोग हैं इंडिया में। आपने देखा रहेगा कोल्हापुरी अखाड़ा रहता है, Yes. कलरीपति पैतों के बंदे लोग रहते हैं, वो लोग नहीं आते खेलते, बट वो भी एक एक्चुअली फाइटर्स है। Yes. तो वो सब चीजें कनेक्ट करनी है अपने को, और अपने को वो एसएफएफ को लाना है इंडिया में टू क्रिएट a promotion which is for the Indians itself. Yes. I think कलरी पेटू से याद आया कि वो भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स आ सकता है इंडिया में, पर मोस्ट ऑफ देम फिर वही, मैं एक ब्रूस ली का डॉक्यूमेंट्री मैंने पढ़ा है जीत कोंडो, उसमें यही था कि ही इज आस्किंग कि एक ट्रेडिशन को छोड़ने के लिए एक सोल उसका जो कनेक्ट हो गया बचपन से, लाइक मैंने कुंफू कनेक्ट इतना कर दिया कि मेरे एक्शंस में भी आपको कुंफू दिख जाएगा। बराबर। मैं जैब भी मारूंगा तो वो कुंफू स्टाइल रहेगा, इसलिए अगर आप जीत कोंडो को भी देखोगे जैसे इट्स अ वर्टिकल स्टाइल, यस, बिकॉज़ वो हैबिट हो जाता है उसका। इसका जरूरी नहीं है कि आप मुझे करो। इट वाज समथिंग अ बिग वे कि एज अ बॉडी स्ट्रक्चर, एज योर टाइप ऑफ जीत कोंडो इज डिफरेंट, माय टाइप ऑफ जीत कोंडो इज डिफरेंट, राइट। द डे टू डे लाइफ में जो फाइट्स होते हैं, मैं 35 पाउंड का हल्का फुल्का आदमी, मेरे लिए स्ट्राइकिंग इट इज समथिंग लाइक फ्लुएंसी, बराबर। इज समथिंग लाइक मैं ये पैटर्न छोड़ के जाऊं कि नहीं जीत कोंडो ऐसे ही प्रैक्टिस होना चाहिए जैसा मैं छोड़ के गया था। So he start that कि लोग वही चीज पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, इसका डे टू डे लाइफ में नहीं मतलब है। इट इज ओके, इट इज गुड फॉर फैंसी, लाइक वुशु भी एक वैसा है, टाई ची वाज वेरी स्लो, इट्स वो मोस्ट एल्डरली, बट इट्स जरूरी नहीं कि वो एल्डरली करे, वो यंग भी कर सकता है, बराबर। उसका डे टू डे लाइफ में इट इज नथिंग टू यूज, पर उसको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी फ्लुएंसी हम पंच में, किक में यूज कर सकते हैं, यूज इन अदर टेक्टिक्स। तो वो बहुत ओपन होना और वो ट्रेडिशन छोड़ना, वो बहुत बोलते हैं ना रेयर क्वालिटी। बराबर। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वेस्टर्न मीडिया यूजुअली वो चीज ज्यादा दिखाती है जो गोरे लोग ज्यादा करते हैं। फ्रैंकली आपको ही पता रहेगा। देखो, अगर आप यूएफसी में देखोगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखोगे, most of the time they mostly promote the styles like BJJ, Yes. Kickboxing, karate and all stuff. And Muay Thai थोड़ा सा Muay Thai, हाँ, Muay Thai तो है ही अलग, हार्डकोर ही है वो। हार्डकोर है। So वो एक चीज है जो थाईलैंड से आई और जिसके किक्स और पंच अभी भी हार्ड है। अगर आप कहीं भी, मुझे कोई बोलता है Muay Thai सीखना है, तो मैं बोलता हूँ कोई भी किक अगर आप लेग्स पे मार रहे हो, it is somewhere connect to kickboxing and Muay Thai. आप वही ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट दे रहे हो। When you're going for jab, you're respecting the boxing academy only. Right. When you're going for grappling, you're representing BJJ only. That's the basic MMA. There is nothing new MMA. आप खुद और add on करो जो चीज MMA में यूज होती है। देखो, यही चीज के ऊपर मैं बोलूंगा, जैसे अभी वेस्टर्न मीडिया ने ये इतने सारे मार्शल आर्ट्स को ये किया हाइप किया हुआ, बट अगर आप कल्चर से देखोगे, इंडियन कल्चर के हिसाब से देखोगे, इंडियन कल्चर में कुश्ती आती है, which is one of the most prominent art of martial art. Yes. ठीक है, कलरी पैतू आते हैं। अपना ये रहेगा कि ये सब भी इवेंचुअली ग्रेजुअली वो मिक्स मार्शल आर्ट के कैटेगरी में आ जाए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कैपियोरा वाला बंदा रहता है, उसकी किकिंग होते हैं, कलरी पैतू वाला भी बंदा हो सकता है जिसके काफी अच्छे रेसलिंग में संग्राम सिंह करके है कोई, बिग बॉस में भी आए थे, ही इज अ प्रोफेशनल रेसलर, सो उन्होंने भी एक फाइट किया है। सो आई थिंक उन्होंने सिर्फ रेसलिंग तो डोमिनेट किया है, बट उन्होंने स्ट्राइकिंग भी रखा रहेगा। तो अभी जैसे उनका एक सडन मैच हुआ था लास्ट पास्ट ईयर में, सितंबर या अक्टूबर में, सो दे आर आल्सो कनेक्टिंग विद देम, एक ट्रेडिशनल रेसलर जिनका आई थिंक ओवरऑल एज ही इज रिटायर्ड, बट ही इज डेब्यूइंग इन एमएमए, राइट। और उन्होंने एक फाइट भी जीता है। वो सीरीज शायद जो प्रमोशन था वो आउट ऑफ इंडिया का था, बट ही वोन दैट मैच, राइट। इट इज मोस्ट ऑफ देम आर चेंजिंग देयर माइंडसेट कि नहीं ठीक है ट्राई करके देखते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि नहीं करते हैं हम लोग पंच एंड किक, भले उनका जो मेन ग्रैपलिंग है, बट स्ट्राइकिंग तो आपको करना पड़ेगा ना। आप जाते से ही थोड़ी रेसलिंग करने लग जाओगे, आप बेसिक स्ट्राइकिंग करोगे, देन यू गो फॉर फ्लोर, आप फ्लोर पे लेके जाओगे इसको, रेसलिंग और व्हाटएवर यू हैव दैट टैक्टिक्स, राइट।
मोस्ट ऑफ फाइटर्स जो है प्रो लेवल पे या जो इन्होंने नाम किया है, संग्राम सिंह ने तो आई थिंक कॉमनवेल्थ वेल्थ गेम में भी अच्छा किया। आई थिंक उनके पास तो आई थिंक हार्डली अनबीटेबल टाइटल है। सो वो इससे जैसा बंदा भी अगर एमएमए कर रहा है, सो ही इज समथिंग लाइक एमएमए स्पोर्ट्स इतना हाइप हुआ है इंडिया में। बराबर। सो राहुल जी, मेरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द फाइटर्स गेट एक्सप्लॉइटेड बाय एमएमए कोचेस और एमएमए जिम्स? Some Huh? gyms and some academies. And how do you define it? डिफाइन बोलेंगे तो डिपेंड करता है, हम एकेडमी पे भी नहीं डाल सकते हैं। इट्स समथिंग लाइक इट्स अ बेसिक नीड। Hmm. अगर वो लर्न करने आया है, सो व्हाट स्किल्स ही वाज लर्निंग, सेमिनार्स लेके जाएगा, वो फाइट्स के लिए लेके जाएगा। सो ना चाहते हुए भी एक नॉमिनल फीस होती है, Hmm. वो प्रेशर बर्डन कर देती है, बिकॉज वो हार्डली एक क्वार्टरली या 6 मंथ का पैकेज लेके आता है, या बराबर। ईयरली का पैकेज एक पेरेंट्स से लेके आता है, या वो अपने कॉलेज फीस से लेके आता है। मोस्ट ऑफ देम जो भी फाइटर्स है एमेच्योर के, वो उसी से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो खुद वेर इनफ है, जो मेरे गाइडेंस पे रहा है, वो उनका ऐसा है कि जस्ट वी आर गुड फॉर फिटनेस एंड आई जस्ट वांट टू डू वन फाइट। आई Okay. एम टॉकिंग अबाउट दिस वे। बट जो यूथ जनरेशन है, उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है। Hmm. शायद वो खुद अर्न कर रहा है, वो फैमिली को देख रहा है, ही वाज टू बिग, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट एकेडमी, नॉट इट डिफाइंड ऑन कि उसका क्या सिचुएशन है। बराबर। ओके, तो अगर बेसिक भी अगर उसके पास नीड आ गई फाइट्स के लिए, तो वो ना बोल देता है, वो बोलता है नहीं मुझे नहीं करना है। ओवरऑल सो उसमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। सम ऑफ देम वो मैं इंडिविजुअल पे लूंगा कि इंडिविजुअल कोचेस पे डिपेंड है कि वो बराबर। कितना उसको यूज करना चाहते हैं। Hmm. ओवरऑल वो इंडिविजुअल कोच है, इंडिविजुअल एकेडमी पे डिपेंड है। बाकी मोस्ट ऑफ देम तो यही चाहते हैं कि भाई जीत के आ जाए, हम साथ में ग्रो करें। Hmm. बिकॉज मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज वर्क कल्चर इतना सिमिलर हो गया कि उसको मालूम है मुझे फाइट करना है। तो जो बेसिक नीड है, डिपेंड करता है, वो फाइटर्स को बहुत बर्डन दे देती है। बराबर। और एकेडमी भी अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वो कब तक एक अपने जेब से जो नॉमिनल फीस उसका जिम का है, उस पर वो सेमिनार्स या फाइट कराए। इट बराबर। इज पर्सन टू पर्सन। वो फाइनेंस के लिए रेडी नहीं रहते। मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बेसिक इन शॉर्ट फॉर्म बोला जाए, वो शायद आप एकेडमी पे भी डाल सकते हो Hmm. कि वो अपने वे में नहीं कर सकते हैं, या वो फाइटर पे डाल सकते हो कि यार वो अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज वो वर्कशिप से आता है, Hmm. ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली ऑल्सो। फिर उसमें Right. उसको अपना भी देखना है, और ऑलरेडी उसने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है पैकेज का। उस पर फिर वो जो सेमिनार का बर्डन आता है, सेट यार ये तो नहीं था, या मेरा नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लूंगा। तो वो बराबर। डिले होते होते फिर बेसिक्स करके मोस्ट ऑफ देम छोड़ देते हैं। ओके। ओके। सो ये ऐसे ही हो गया, मतलब आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया पर आपको हम्म। बुक्स भी बाहर से खरीद बुक्स लेना भी है। बाहर से खरीदना है, ओवरऑल ट्रेनिंग करना है, सेमिनार्स के लिए जाना है आपको। नहीं भी करना है, अगर वन ऑन वन आप कोचेस भी करते हो, तो बट आपको एक एमेच्योर रजिस्ट्रेशन फीस तो करनी ही है ओवरऑल। बराबर। और एक जो नॉमिनल फीस एक यूथ का जो भी रहता है, कॉलेज जब वो खत्म करके आता है, तो ही हम्म। वॉज ऑल्सो यंग, उसको भी उतना पे नहीं रहता है। बराबर। और किसी किसी के फाइनेंशियल कंडीशंस भी वैसे रहते हैं कि वो काम करेगा तो कुछ होगा घर में। तो बराबर। देयर आर समथिंग लॉट ऑफ थिंग्स, सो वी कैन ब्लेम कि फाइटर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि क्या है। इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। बट वो हर फील्ड में यार, आप एक फील्ड में नहीं डाल बराबर। सकते, वो हर एक बराबर, फील्ड में, हर एक फील्ड में हर वो एक एक फील्ड में, आता हर है। एक वर्क प्रोसेस पे है। उसमें आप नहीं बोल सकते कि हम ही कर रहे हैं, बिकॉज उसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म। तांडव काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, वो फिर एक हमारे ऊपर ही तमाशा है कि यार हमने ही अपने इंडस्ट्री को बोल दिया है। डिपेंड ऑन बराबर। पर्सन टू पर्सन पे क्या है वो। राइट। सो वही पॉइंट के ऊपर मेरा एक नेक्स्ट सवाल रहेगा आपसे। हम्म, सो एज अ फाइटर, जब वो उसकी एज हो जाती है, सो व्हेन डू यू थिंक अ फाइटर शुड क्विट? लाइक going into a stage, I mean going into a cage, when do you think that fighter should quit? मोस्ट ऑफ फाइटर आफ्टर 32। Okay. आफ्टर 32 अगर वो ट्रेन कर रहा है, सो इट इज समथिंग, इट इज अ हाई सिग्नल कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप। और उसके पहले यू स्टार्ट कोचिंग। अगर आपको एमएमए इतना पसंद है, यू स्टार्ट कोचिंग, यू स्टार्ट बिकन एन एकेडमी, या आप ऑफिशियल्स हो जाओ कहीं पे भी, कोई भी एक लीग में आप ऑफिशियल हो सकते हो। कोई भी एक सेमिनार जिसके 3 to 4 मंथ में मैचेस आते हैं, कोई भी प्रमोशंस के, आप वहाँ पे हो जाओ अगर आपको टचअप रहना है तो। एकदम प्योर छोड़ के भी मतलब नहीं है ओवरऑल यार। स्टार्ट ट्रेनिंग विथ योर सेल्फ, ओपन योर ओन एकेडमी, Right. डू योर स्टफ। मोस्ट ऑफ देम हमारे जो एकेडमी में, हम तो ये कर रहे कि नहीं, पार्ट टाइम हम अर्न करो, वी विल प्रमोट यू, बराबर। हैव समथिंग एज एन इंसेंटिव अमाउंट, जहाँ पे आप ट्रेन कर रहे हो अपने वर्क एथिक पे। अगर आपको सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे, इफ यू हैव इवनिंग टाइम, सो जस्ट ट्रेन विद देम, बराबर। train new stuff, learn new stuff. So it is okay, it is good for academy also, because आप ग्रो होगे तो हम ग्रो हो जाएंगे। देर आर बराबर। वेरी फ्यू जो चांस देते हैं, नहीं तो बोलते नहीं ठीक है आप छोड़ दो। ओवरऑल इट इज ओके, हम न्यू टैलेंट ढूंढते हैं।
हाँ, It is something like that goes on. प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए मेरे ख्याल Yes, से, लाइक practice. प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए, Yes, अगर आप केज में खेलो या ना खेलो, yes, वो फिटनेस वाइज तो कंटिन्यूस yes. होना ही चाहिए, क्योंकि इट Almost. इज ऑलवेज बेटरफुल एंड यूजफुल फॉर द बॉडी इटसेल्फ. Hmm. So that is one of the most important thing. Or so we'll move to our next part, Hmm. which will be about Swatantra Fight Festival. Okay. आपने वहाँ पे कोच किया था, आपका फाइटर भी खेला था दीप. Hmm. So you tell me Hmm. in brief about how was your experience with Swatantra Fight Festival. It was boom, yeah. It was lavish. It was something that मैंने भी और भी प्रमोशन किया है और मुझे बोला भी गया था कि यार कैसा था वो इवेंट. बहुत टॉप जो जिनके जिम्स है सांता क्रूज में, उन्होंने भी बोला था कि यार कैसा गया था वो जिम में, बोला आपको आना चाहिए था. इट इज़ वॉज समथिंग लाइक अ साउथ बॉम्बे प्रमोशन. आई थिंक उसमें भी नहीं रहे. द वे स्पेस वॉज देयर, इट वॉज अ कैफेटेरिया, इट वॉज म्यूजिक गोइंग ऑन, लाइव डैम band music. It was a match going on. People are having a beer, having a chill. It's a pure South Bombay event. Right. So it was a boom यार. It was something like that. वो नाइट हम भूल नहीं पाएंगे. Literally वो आने के बाद तो एक दिन मैं भी नहीं सो पाया. यार ये इवेंट हमने सक्सेसफुल कर लिया है और दीप भी जीत चुका था. वी आर वेरी हैप्पी. ठीक है चलो एक मैच आ गया है, प्रो लेवल का आ गया है मैच. Yes. एक कैटेगरी उसके पास आ गया. इट वाज अ वेरी माइंड ब्लोइंग यार. Yes, thank you so much. So, what do you think? अगर globally SFF को grow करना है, what are your thoughts that SFF should be doing in future? आई थिंक इन फ्यूचर, आई थिंक मैं एक ही एग्जांपल दूंगा. जो वाशी के जिम है फिट एंड फाइट क्लब, जैसे वो अपने ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट एक जगह लेकर अभी उन्होंने पुणे में ओपन किया है अपना एक जगह लेकर, वैसा आई थिंक प्लान कर सकते हैं. जो अच्छी कम्युनिटी है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पॉन्सर्स के साथ. सो इट इज़ समथिंग लाइक यू हैव अ फिक्स प्लेस जहाँ पे आप मैच्योर्स नहीं तो आप अपने सेमिनार्स और ट्रेनिंग रख सकते हैं. यू कैन हायर ग्रेटर फाइटर्स एज ए कोच. You can hire us also. We are open Right. up with them. So I think I'm talking about Swatantra Fight Festival. It can go for Swatantra Training Academy also. MMA True. Training Academy. Yes. और I think उसमें प्रेसिडेंट आप ही रहो. आप हमको जो भी पोजीशन दे दोगे वो पोजीशन हम ले लेंगे. ओवरऑल एज ए फाइटर, ग्रैपलर, तांडव में आई थिंक he is also doing Amol. His coach is doing something like that. So Yes. we'll get together कि नहीं हम आके मिल सकते हैं, हम अपने ट्रेनिंग शेयर थॉट कर सकते हैं. तो इट इज़ अ वेरी वाइल्ड, इट्स अ ब्रिज गैप कि जहाँ पे Right. हर एक ट्रेनिंग एकेडमी आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यू पिकअप कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है, व्हाट वाज डूइंग बेस्ट. तो एक बहुत न्यू एरा रहेगा ओवरऑल, बिकॉज सब आके एक जगह पे मिलेंगे एंड दे हैव देयर ट्रेनिंग एकेडमी. यू कोच देम दिस वे, यू कोच देम दिस वे, आई एम हायरिंग यू एज एन एसएफएफ कोच. Okay. 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 या आपने तो काफी ब्रॉड वे में बता दिया, ट्रेनिंग Yes, सेंटर के बारे में yes, बता दिया. yes. इवेंचुअली हम लोग वो चीज के ऊपर भी आएंगे, Mhm. बट इट विल टेक सम टाइम Mhm. बिकॉज वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड. एक साल ही हुआ है अपने को स्टार्ट Yes, होके, yes. और हम लोग और भी इवेंट्स के साथ आएंगे. तो Mhm. इवेंचुअली स्वातंत्र ट्रेनिंग सेंटर विल बी श्योरली Yes. कमिंग अप. Yes. सो मुझे मुझे 3 प्रोस और 3 कॉन्स बताओ स्वातंत्र फाइट फेस्टिवल के. लेट्स स्टार्ट विद द 3 कॉन्स फर्स्ट. मतलब 3 चीजें जिसमें स्वातंत्र फेस्टिवल को सुधरना चाहिए. और I think three G's about something in media hype, ओके, media average. थोड़ा मार्केटिंग. सा मार्केटिंग थोड़ा सा वो बेसिक है. कुछ कुछ प्रमोशंस इतने हाइप कर देते कि वो आ जाता है. सिर्फ वो एक चीज़ दिख रही है. एक चीज़ है मोर सेमिनार्स आप रखो सर, भले वो पेड सेमिनार रखो. आई थिंक इट विल कनेक्ट विथ यू पर्सन टू पर्सन, और वो प्रोफेशनली होना चाहिए. बराबर. चार्ज देम, बट आप बोलो कि नहीं यू हैव टू कम विथ अस. फाइटर्स का वो रखिए आप, वो चीज़ रहेगा. और उसमें जो फाइटर्स है इंटरेस्टेड, आपको भी लगेगा कि नहीं अगर पे करके मेरे पास आ रहा है सो ही इज़ माई मैन, राइट. ही इज़ डूइंग समथिंग लाइक दैट. अगर ये चीज़ मेरे सेमिनार्स में इतनी अच्छी हो रही है तो फाइट्स में कितनी अच्छी होगी. बराबर. 5 फाइटर्स और आपके जुड़ जाएंगे एंड ये विल एनकरेज यू फॉर मोर. वो वेट करेंगे अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे. इट विल नॉट समथिंग कि 1 ईयर हो गया, अरे आया कि नहीं आया. नहीं, सेकेंड इट विल बी कंटिन्यूटी. अरे अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे, बराबर. अभी तो ये इवेंट हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है. 3 to 4 इवेंट्स, आई थिंक समथिंग लाइक दैट. इट विल कीप गोइंग ऑन. ओके. बाकी जो प्रो है वो तो यही है कि प्रो अभी तक आया ही नहीं है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम प्रो जो फाइट्स आप करवा देते नहीं नहीं, मेरा पूछना था 3 प्रोस, हम्म. लाइक 3 अच्छी चीजें जो आपको स्वातंत्र फाइट फेस्टिवल में पसंद आई. जैसे कौन से जो मुझे करने चाहिए थे, और 3 जो मैंने कर दिए, वो 3 चीजें आपको कौन सी पसंद आई? एग्जीक्यूशन फर्स्ट, ओके. एमएमए का. ओके. सेकेंड, गेट टू नो पर्सन टू पर्सन, academy to academy, and doing your stuff get right.
यस आई एम द पर्सन हु इज टेकिंग द चार्ज ऑफ एसएफएफ। बहुत कम कर पाते हैं, आई थिंक कोई लोग अपने अपॉइंटेंट को या अपने असिस्टेंट को ही भेज देते, बट आप पर्सन टू पर्सन गए हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज वो कोई करता नहीं है, वो कंफर्ट जोन से निकल के आना, बिकॉज आपने खुद से वो एक सोच ली थी कि नहीं मैं करूँगा ये चीज़, फिर बराबर हम जुड़ते गए, वी बराबर गेट कनेक्टेड विद देम। यस ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दैट, वो एक चीज़। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, हम्म स्पॉन्सरशिप्स, वो बहुत कम में आता है, आई थिंक जो भी है वो ऑलरेडी पीछे से काफ़ी अच्छा बैकअप है, बट अपने स्पॉन्सरशिप अपने अपने चीज़ पे लाई है, नहीं तो बडवाइजर को कौन स्पॉन्सर ले। बडवाइजर बड लाइट बडवाइजर यूएफसी का था और यहाँ डायरेक्टली सबसे पहले स्वतंत्र फाइट फेस्टिवल में स्वतंत्र आया। फाइट फेस्टिवल, तो वही बोला कि बडवाइजर स्पॉन्सर, तो मैंने भी बोला था मेरे कलीग्स को, यार वी हैव अ स्पॉन्सर लाइक बडवाइजर, सो यस। और भी थे, आई थिंक बैंड भी थे उसमें हाँ कम्युनिकेट करते हुए, आई थिंक हमारे फूड काउंटर्स भी थे, वो बहुत कम यस है, रेयरली किसने कोशिश भी की वो नहीं हो पाया, आपने वो कर दी है। सो इट इज थैंक समथिंग यू लाइक दैट कि नेक्स्ट वीक में और स्मूथ जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा, यू नो द स्टफ, कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, और उस पर भी हम प्रेशराइज करेंगे कि क्राउड को कैसे खींचा जाए, बराबर जो ऑडियंस क्राउड है यस उसको कैसे पुल किया जाए। यस वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यस। ही है। अभी जैसे ये मेरा फर्स्ट इवेंट था या हम्म। फर्स्ट प्रमोशन था, उसमें कैसे था कि एग्जीक्यूशन करना था, वो हम्म। इम्पोर्टेंट था। हम्म। फाइटर्स को आउटकम मिले, जो हमारा मेन मोटो था, Yes, फाइटर्स of को course. पेमेंट मिले हम्म। दूसरे दिन ही, वो सबसे बड़ा मेन Yes, मोटो था, था। of course. और एग्जीक्यूशन ऑन अ वेरी अनबायस्ड वे हम्म। वाज द मेन मोटो। जैसे रेफरीज आए थे अपने, वो सारी चीजें मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट Yes. थी। मार्केटिंग करेंगे क्योंकि Yes. ये एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये Yes. रिकरिंग इवेंट Yes. है। अपना नेक्स्ट 3 साल में इसे फोर्टनाइटली बनाना है। Yes. तो इट वाज अ स्टार्ट, हम्म। it was a start. We are just starting up with that, Hmm. and eventually we will come to that point where वो रीच भी लोगों तक पहुंच जाएगी। Okay, definitely, yeah, we are with you. So about the next question, I will ask you about what were your views about the referee in Swatantra Fight Festival? अरे इट वाज टॉप क्लास यार, एंड्रू को कौन नहीं जानता है, आई थिंक हम उसके रील्स देखते हैं, इज अ वेरी प्रोफेशनल गाय Right. ओवरऑल। इवन शायद आपका भी जब नॉकआउट हुआ या जो भी था, उसने बहुत फ्रिक्वेंटली वो स्टॉप Yes. किया, इट डजंट वांट इंजरी, ब्लड True. सबके निकले हैं, Yes. बट ही डो कि नहीं जहाँ पे स्टॉप करना है वहाँ पे स्टॉप करना है, वो बराबर। फ्लो में भी जा सकता था, बट Yes. ही समथिंग लाइक दैट, ही वाज नॉट बायस, ही वाज सेइंग कि भाई मैं क्यों इंजरी होने दूं एज अ रेफरी, वो बहुत बिग स्टेप बराबर रहता है ओवरऑल। बराबर। आई थिंक वो तो रेफरीज का तो सुनना ही नहीं है, द वे टीम केम अप, द Hmm. टीम जो फाइट हुआ था, आई थिंक हमारा तो बहुत शॉर्ट टर्म हुआ था, बट द वे आई हैव सीन अमोल फाइट्स, Hmm. द वे जो ग्रैपलिंग हुई थी, प्योर प्रो लेवल की ग्रैपलिंग थी वो, अलग वे में, बिकॉज वो बराबर। सेकंड राउंड के पूरे 5-5 मिनट्स तक चली थी, Yes. नहीं तो तीनों राउंड चले थे अमूल तीनों के। राउंड 5-5 मिनट्स के थे वो, Hmm. बहुत कम होता है 3 मिनट्स के राउंड लोग रखते हैं, या 2 मिनट, 1.5 Hmm. मिनट, डेब्यू है तो 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट Right. बहुत होता है, बिकॉज उनको बाकी सब फाइट्स कंप्लीट करनी रहती है, Yes. बिकॉज उनको खत्म करना है। हमारे 8 फाइट थे तो वो 5-5 मिनट तक चले थे, तो वो Yes. एक इट वाज अ, बोलते हैं ना, सॉल्ट एंड पेपर जैसा था वो, Right. इट Right. वाज समथिंग कि वो एक जगह नहीं जा रहा था, हाँ। वो भी ग्रैपल कर रहा है, ये भी कर रहा है, सो इट वाज अ वेरी प्रो लेवल, तो आई थिंक उसमें तो डाउट नहीं है, वो जब आप प्रो लेवल कर रहे हो तो यू नीड अ प्रो लेवल रेफरीज, यू नीड अ प्रो लेवल, आप उसमें नहीं जा सकते कि ठीक है यार एमेच्योर के रेफरी को हमने रख लिया या कोई एक लर्निंग है रेफरी, लाइक आपने रख लिया, आपने बोला नहीं, आई विल गो विद देम, जो भी रहेगा मैं चार उसी को करूंगा, ही विल बी द रेफरी। आई थिंक आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ही वो चीज़ कर दी थी कि इज एन इंडियन एमएमए रेफरी, और वर्ल्ड रेफरी में भी है, वो जाते रहते हैं Yes. टूर्स पे, यस। मैंने एक्चुअली काफी सारे, मतलब पूरे एमएमए इंडियन सीन में मैंने काफी लोगों को ढूंढा, काफी फेडरेशंस वालों को मिला था मैं। ओके, पता चलता है लोगों से मिलने से, लोगों को पता करने से पता Connect चलता है करने कि कौन कौन से लेवल के ऊपर है। Yes. एंड वी जस्ट वांटेड द बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स एंड द रेफरीज इन द रिंग, यस, क्योंकि वैल्यू तभी आएगी Yes. जब कोई वो रेफरी वो रिंग में रहेगा, देन कम्स द फाइटर्स। ठीक है, अगर तुम लोग का रेफरी इंपॉर्टेंट है, मतलब रेफरी इज द वन जो सब जानते हैं, तुम लोग के फाइट को वैल्यू मिलती है, तुम लोग के Yes. प्रमोशन को Of वैल्यू course. मिलती है। और मेरा मोस्ट ऑफ द मेन एम वही था कि वैल्यू फॉर मनी जनरेट हो, मतलब वो इवेंट या जो प्रमोशन हम लोग ने किया एसएफएफ, उसका वैल्यू क्रिएट हो। यस, ठीक है, काफी सारे लोग करते हैं, आपको ही पता है, काफी हम्म। सारे लोग करते हैं, एमेचर लीग्स करते हैं, या दूसरे, आई एम नॉट काउंटिंग एमएफएन इन दिस बिकॉज एमएफएन हैज रीच्ड अ लेवल which we have to catch up with them. ठीक है, but compared to the other promotions which are happening all over India, important है कि आपके एजुकेटर्स, आपका रिंग
और आपके सर्विसेज हम्म, आप फाइटर्स को क्या दे रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैंने आपसे सबसे पहली बार सुनी थी जब आपने वो लीग के बारे में बोला था, आप जो लीग से कनेक्टेड हो। दिन भर लोग आते हैं, सुबह से शाम आते हैं और उनकी फाइट रात को 9 बजे आ जाती है। yes, ये एक पर्सनल मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था। हम्म, आई यूज्ड टू प्ले फॉर ताइक्वांडो, हम्म, नेशनल स्टेट डीएसओ तभी भी होते थे। yes, सुबह जाते थे, शाम को 8 बजे अपना नंबर आता था, फिर छः yes, सात फाइट करना है, खाए अच्छा, बगैर कुछ नहीं, वहीं पे लेट के सोए हुए गार्डन में yes, और वहीं पे टूर्नामेंट होता है हमारा। तो वो एक एक्सपीरियंस है और वो चीजें मैं चाहता था कि मेरे इवेंट में वो ना हो। yes, जो आए रिस्पेक्ट के साथ खेले, हम्म, उनका नाम हो, उनको प्रमोशन मिले। देयर शुड बी एन अपलिफ्टमेंट ऑफ द एमएमए और द सर्विसेज व्हिच आई एम डूइंग। हम्म, वो मेरा मेन मोटो था। सो दैट्स हाउ एसएफएफ वाज लाइक born yes, and you were there. yes, definitely we are really enjoyed, I think वो इवेंट है। अभी तो आई थिंक जो आने वाला इवेंट होता है और ग्रैंड सक्सेसफुल करेंगे। यस, उसके लिए तो काफी सारे यस, सरप्राइजेस है। यस, सो नेक्स्ट नेक्स्ट आपके लिए ऑडियंस के क्वेश्चंस रहेंगे ओके, जो मैं आपको पूछूंगा। 4 क्वेश्चंस है, सिंपल, ओके, आपको बस आंसर करने हैं वो। हम्म, बी फ्रैंक एंड बी yes, ब्रीफ अबाउट इट। okay, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू ट्रेन योर सन और डॉटर इन एमएमए yes, definitely, एंड व्हाई? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, जिस तरह का माहौल हो रहा है, द वे एक लड़की या एक कोई भी बच्चा उसको मोलस्ट किया जाता है, या कोई एक बच्चा जो कमज़ोर है उस पर, बिकॉज मैं खुद वो चीज़ में रहा हूँ बचपन में, बुली किए तो जाते हैं। बुली किया जाता है उसको, या उसको बहुत चीज़ें परेशान की जाती है, नॉट सिर्फ स्कूल में, शायद वो सोसाइटी में खेलने जाता है, तो अगर मालूम पड़ता है कि उस पर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो पीपल विल बाय दैट, पीपल टेक एन एडवांटेज विद दैट। राइट, तो ये चीज़ ओके कि एमएमए हम तभी से सिखाएं और तभी से हम डे टू डे लाइफ में करें, बिकॉज हमारे टाइम पे नहीं थे, शायद हमारे फादर बिजी थे, तो हमने वो बुली देखी है, मैंने खुद भी देखी है वो चीज़। सब लोग ने देखा है, इवेंचुअली जो यस, ये मार्शल आर्ट्स फील्ड में है, यस, सब लोग बचपन सब में लोग ने वो बुली हो बुली चुके वगैरह देखे हैं। हैं। तो यस वो, और इट इज़ एन ओवरऑल एक्सपीरियंस, ग्रैपलिंग, जूडो, रेसलिंग में बोलता हूँ आज की जनरेशन इज़ वेरी ब्लेस कि राइट, आपको वो टैक्टिक्स सीखने मिल रहे हैं, हमारे टाइम पे नहीं था। आई थिंक माय फादर वाज आल्सो अ कुंग फू कोच, इट वाज समथिंग लाइक दैट, आपने एक चीज़ की आपको वही एक चीज़ 1000 बार प्रैक्टिस करनी है। बराबर, आज तो फिर भी अच्छे हैं, आप जिम में जाते हो, यू गो एट बॉक्सिंग है सर, टुडे इज़ अ ग्रैपलिंग डे, so you have to teach grappling, today is a striking day, you have to sparring, राइट, केयर लगा के आप स्पारिंग कर रहे हो, हमारे टाइम पे वो नहीं था। तो इट्स अ बिग चेंज इन एमएमए आल्सो, राइट, कि आपको फ्रीडम है आस्क ऑफ क्वेश्चन कि आपको क्या करना है। बराबर, ऑफ कोर्स आपको सेल्फ डिफेंस में क्या सीखना है, अगर कोच अच्छा है तो वो भी सिखाएगा आपको कि नहीं बराबर, ठीक है, हाथ पकड़ा है कैसे करना है, नेल्स को कैसे यूज़ करना है, फिंगर को कैसे यूज़ करना है, पाम को कैसे यूज़ करना है। तो इट इज़ ओके यार, सो व्हाई नॉट, इट्स ओनली अबाउट एमएमए, इट्स ऑल अबाउट व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, लर्न फॉर योरसेल्फ ओनली। आप राइट, ये नहीं करो कि आपको किसको मारना है, बट आप रेडी रहो कि आपको टेक्टिक्स मालूम पड़ने चाहिए कि एक पेन भी आया तो मैं घोप दूंगी सीधा, बराबर, एंड आई विल हिट हिम एंड आई विल रन अवे, ट्रू। समथिंग लाइक दैट। सो सेल्फ यस, डिफेंस आई इज विल मोस्ट ऑफ द डेफिनेटली इम्पोर्टेंट ट्रेन यार। और आप उम्र से कम दिखते हो, आई एम 35 नाउ। थिंग। वो तो है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, बिगेस्ट लाई सोल्ड टू इंडियन फाइटर्स। यू विल गेट रिकॉग्नाइज इन एवरीवेयर, या उनको जो फर्स्ट फाइट ही दिया जाता है वो बोलते हैं यस इट इज़ समथिंग दैट यू विल रिमेंबर, बट वो रिमेंबर नहीं होता, इसकी जर्नी काफ़ी लंबी होती है एज ए बराबर, फाइटर्स की। इट्स नॉट समथिंग कि एक लीग या 2 लीग से होता है, इट इज़ समथिंग वो बहुत लंबी जर्नी। आप अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तो ही आप ये इंडस्ट्री में आए एज ए फाइटर्स। बराबर, आपको थोड़ा सा बैक बिचिंग भी होगा, कहीं जगह पे आप सिर्फ विन भी हो गए तो आपको सिर्फ मेडल लेके आना पड़ेगा, कहीं जगह पे आपको मिला पड़ेगा, बट इट्स अ कंसिस्टेंसी, इट विल राइट, मेक समथिंग लाइक दैट। इट इज़, हाँ कुछ फेडरेशन है कि आप आ जाओगे, विल मेक यू, बट व्हेन द इंजरी गोज वे या कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुआ, डेफिनेटली द सेकंड फाइटर इज रेडी हाँ, to compete it. So it is something like you have to be very consistent. ट्रू। आई Yes. टोटली बिलीव इन दैट Yes. कंसिस्टेंट पॉइंट, Consistency. कंसिस्टेंट होना Yes. होगा तो और ही बहुत आपको ग्रो सेफली, देगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे फाइटर्स, ये कुछ बॉक्सर्स को मैंने देखा है कि उनका गेम नहीं है एमएमए में, बट वो एमेच्योर इतने खेल स्मार्टली खेलते हैं, जहाँ पे वो बेसिक किक्स और पंच में वो आराम से अपना गेम लेके जाते हैं। बराबर, सो इट इज समथिंग, गो विथ स्मार्ट वर्क, हम्म, गो विथ स्ट्रेटजी। आई नो कभी कभी नहीं होता है, इट इज़ ओके, इट्स ऑल अबाउट लक, बट द वे स्ट्रेटजी वर्क्स, आपका हार्डवर्क काम नहीं करेगा ओवरऑल, बराबर, सेंस काम नहीं करेगा कि नहीं मैं जाके पकड़ लूंगा जो मेरा स्ट्रेंथ है, इट इज नॉट समथिंग कि उसने भी वैसा ट्रेनिंग किया रहेगा, ही इज बराबर, ऑल्सो इज कॉन।
आपको नहीं मालूम वो क्या करेंगे. Hmm. So next question is like one habit every fighter must kill immediately. कि मैं प्रो फाइटर बन गया हूँ या मैं एमेच्योर फाइटर बन गया हूँ. आई नो ऑल द स्टफ. नो, यू डोंट नो. Okay. यस, देर आर मेनी मास्टर्स या आपके खुद के गुरु वो चीज़ आपसे छुपा के तो नहीं रख रहे, बट वो चीज़ उन्होंने नहीं दी है. वो वक्त आने पे ही बताएंगे कि अगर आपको लगेगा कि अरे उनका एज हो गया है, आई कैन बीट हिम, Hmm. या नहीं हो गया, नहीं, वो बहुत गलत फहमी है. देर आर फ्यू मास्टर्स, देर आर मेनी मास्टर्स जिनको खुद को आता है बट वो नहीं बताना चाहते. बराबर. दे आर वेरी हम्बल कि नहीं ठीक है, यू लर्न, यू मेक माई नेम. बट किसको लगता है कि नहीं, माई मास्टर इज तो स्लो, या मैं उनको आराम से डोमिनेट कर सकता हूँ. नो नो, यू डोंट नो. नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन कंपटीशन लेवल. जरूरी नहीं है वो कंपटीशन लेवल पे आपको हरा है, वो कोई भी लेवल पे आपको हरा सकते हैं, आपके स्ट्रेंथ पे, आपके वर्क पे. Hmm. कोच होता है. यस, स्टूडेंट होता है. यस. सो ईगो है और यू नो ऑल स्टफ. नहीं, यू डोंट नो, बिकॉज आपका कोच भी नहीं बोल रहा है कि मुझे सब स्टफ आता है. आई एम हाँ. ऑल्सो स्टिल grinding myself every day. So Right. you have to grind yourself every day in some stuff, whatever. Right. Right. So ये last question है. If you have to start again in your life, Mhm. what would you do other than MMA? Motivational speaker. हाँ. Yes. और एमएमए तो छोड़ नहीं सकता सर. एमएमए इज इन माय सोल. जब से उठा हूँ मैं आपको एक इमेज भी भेजूंगा जहाँ पे 2 साल में मैं नानचक पकड़ के खड़ा हूँ. हाँ. 2 years में. सो एमएमए कांट गो बिहाइंड इट. मैं आई थिंक भाईंदर या मुंबई साइड भी मैं जॉब करता था तो मैं पार्ट टाइम ट्रेनिंग देता ही था वहाँ पे जिम्स वगैरह में. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. इट्स कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग. जब मैं विरार शिफ्ट हुआ सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन विद स्कूल्स, ट्रेन विद चैंपियनशिप. सो एमएमए विदाउट एमएमए तो नहीं है, बट अगर हुआ तो मोटिवेशनल स्पीकर. Okay. Yes, I can influence anyone to be a better person. That's right. That is the one of the most important thing that a coach should have, Yes, and you already have it. thank you, sir. So it was wonderful having Mr. Vajpayee over here, and काफी सारी चीजें पता चली है हमें. Yes, और फाइटर लोगों ने भी वो पॉइंट्स को काफी ज्यादा रेफर करना चाहिए. yes. It was wonderful having you over here, and thank you for coming down on the Same here, podcast sir. with Same here. Red Card. Thank you for inviting us. Yes. मेरे thoughts पे आपको अच्छे लगे होंगे. ये Of प्रार्थना course, है of हमारी. course, of course. Thank you. काफी मजा आया. Thank you. मिलते हैं जल्दी. Sure. We'll meet at. Yes. Thank you.